गुड इवनिंग मैम एंड ऑल द स्पीकर्स एंड स्टूडेंट्स। जैसे आप सभी को पता है कि मैंने क्लासेस हैव अरेंज अ स्पेशल सेशन फॉर स्पेशली फॉर द कॉमर्स स्टूडेंट। एंड ये जो सेशन है, जैसे आपको पता रहेगा कि हमेशा व्हेनेवर भी आस्क की बच्चों को 10th के बाद स्पेशली कि आपने क्या प्लान किया, या इवन 12th के बाद भी आस्क ना कि आप लोग क्या सोचे, आप लोग क्या अपना फ्यूचर या करियर में आप क्या डिसाइड करते हो, तो मोस्टली 50 to 60% हमें ये आंसर मिलता है, सर हमने डिसाइड नहीं किया, सर हमने सोचा नहीं, सर पता नहीं कि अभी देखते हैं हम 12th के रिजल्ट के बाद। एंड आई कैन बी वेरी मच श्योर कि ये सेशन के बाद और ये इंफॉर्मेटिव सेशन के बाद एटलीस्ट आपको 50% आइडिया रहेगा कि आप आगे क्या कर सकते हो, आपके पास क्या क्या करियर ऑप्शन है। एंड आप आगे जाके ऐसा नहीं बोलोगे सर मुझे पता नहीं। तो बट ऑब्वियसली डेफिनेटली जो जो बच्चे अभी तक अटेंड नहीं किए या ज्वाइन नहीं हुए वो मिस तो करने वाले हैं बहुत सारे, ये जो इंफॉर्मेटिव जो सेशन है वो। एंड थैंक्स टू एवरीवन जो अभी तक ज्वाइन किए। एंड आई हैंड ओवर टू रेशमा मैम। मैम आगे या So good evening, all dear students. As Henry sir just said, हमने काफी बार like first I'll tell my guest speakers for the day that these are our students. All the attendees are our students from the commerce stream. So they are right now in grade 11 and some of them are from grade 12. So this is all the commerce students, but a mix of grade 11 and 12. So they are quite tender at their age. And इसके पहले जितने भी webinars, जितने भी career oriented रखे हैं, so we were kind of coaxing them कि आपको stream properly choose करना है. So right now they were only in the circle of कि science में क्या plus or minus है, commerce में क्या plus or minus है. So already they have heard this word career so many times. Am I right, students? So in Menon, the intention is. Am I audible? Can someone please confirm once again? Yeah. Yes, ma'am, you're So audible. we have always been, yeah, thank you. We have always tried to be very, very student-centric because ultimately we are here for the service and the better future, betterment of the students. So ये career seminars हम लोग काफी बार रखते हैं क्योंकि बच्चों का first step right direction में जाए. So now that they are all into commerce, again if we today ask them कि why you chose commerce, तो अभी तो webinar है, but one to one if we ask them ना, first thing they'll come up with मैम साइंस में इतना पढ़ाई है, कौन इतना पढ़ाई करेगा, है ना? So first the response will be मैम साइंस नहीं लेना है, बहुत पक गए साइंस से. So they know only this much कि आर्ट्स करना नहीं है, उसमें भी इंग्लिश वगैरह है, हिस्ट्री है, और साइंस में तो बहुत पढ़ाई है. There's lots to study. We are constantly going to be dipped in the books only. So just to avoid that, we have taken commerce. So that's on the lighter part, but again we feel along with the coaching it becomes our responsibility, since now 11th and 12th is just a 2-year course, so it becomes our responsibility to throw light कि within commerce, now all the speakers will agree, I'm sure parents and students also know कि इतने short span of time में commerce का जो scope है, commerce का जो field है, वो कितना जल्दी rapidly change हो गया है. And changes, it has become multi-dimensional, so many various options, so many successful career modes are available. So now more and more the choice, more the options, more the confusion, और कभी कभी गलत जाने के भी chances होते हैं. So our only intention of keeping the career seminar is जब आप सिर्फ सुनते हो ना फ्रेंड से, अरे तू क्या करने वाला है 12th के बाद, अच्छा सीए ना, हाँ सब लोग कर रहे हैं, मैं भी यही सोच रहा हूँ सीए करना चाहिए. नो नहीं नहीं, मेरे सब फ्रेंड्स होटल मैनेजमेंट कर रहे हैं, मुझे भी लगता है मुझे होटल मैनेजमेंट की तरफ. तो देयर इज डेफिनेटली वन स्मॉल एलिमेंट व्हिच keeps on influencing you. Sometimes you see your elder brother sister, sometimes you see your cousin, sometimes you see your friend circle, neighborhood. तो आप जल्दी से इन्फ्लुएंस हो जाते हो कि ये भी अच्छा है वो भी अच्छा है. But my dear students, the important thing is in today's today this point of time, important for you to realize is what really interests you and what really makes you passionate towards your field. वो पहचानना हर एक के लिए अलग है. It is different from case to case. So you have to find out. I'm sure you attended that session also where we kept the caption as
follow your passion. क्योंकि अगर आप पैशनेट नहीं रहोगे, अगर आप खुद वो फील्ड में सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहोगे और एंजॉय नहीं करोगे, तो कहीं ना कहीं आप वो सक्सेसफुल लेवल पे नहीं पहुंच पाओगे. एंड लकीली वी आर इन कॉमर्स, ऑल ऑफ अस आर इन कॉमर्स. आई माई सेल्फ having the background of masters of commerce and business administration, तो I feel very happy and to be a commerce student, क्योंकि हम लोग सब कुछ जो पढ़ते हैं वो रियली यूज करते हैं, अप्लाई करते हैं, है ना. तो हम लोग वो फिजिक्स केमिस्ट्री की तरह नहीं, आई होप नो साइंस स्टूडेंट्स आर लिसनिंग, बट हम लोग वो फिजिक्स केमिस्ट्री वालों की तरह नहीं है कि पढ़ा कुछ और यूज हुआ कि नहीं हुआ. बट whatever we learn in bookkeeping, we learn in secretarial practice, जो भी हम पढ़ते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स में हम इतने सारे अच्छे अच्छे टॉपिक्स पढ़ते हैं. तो whatever we learn in commerce we actually apply it when we are working. तो we are already in a very application oriented field. और उसके अंदर क्योंकि मैंने आपको बताया कि बहुत सारे डिफरेंट ऑप्शंस खुल चुके हैं, तो we don't want you to have the again the first step in the wrong direction. आपको एक informed decision लेना है. और 12th standard students के लिए भी टाइम है, क्योंकि अभी you're around 5 months away from your board exam. So when the guest speakers give you an idea कि after 12th what will be the entrance exam, so you can start preparing your 12th standard exam itself from that point of view. Why we have chosen this point of time? Because now 12th standard students are also well settled, 11th is also well settled, so now you can take a proper informed decision. ऐसे किसी के भी influence में आके या just हवा में कुछ आपने सुन लिया, ऐसा नहीं है. तो 12th के बोर्ड एग्जाम पे हमारा फोकस डेफिनेटली रहता है, अच्छे रिजल्ट्स पे फोकस रहता है. बट वंस द एग्जाम ओवर देन एवरी इंस्टीट्यूट विल हैव देयर ओन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. और जब आप वो एग्जाम में अच्छा फेयर करोगे, परफॉर्म करोगे, देन ओनली यू विल गेट इनटू बेटर इंस्टीट्यूट्स एंड बेटर कॉलेजेस, और फिर आपका पूरा ट्रैक वैसे सेट हो जाएगा, राइट. सो एज सर वाज सेइंग, I hope all of you, like maximum of your friends and all, are also attending today's session, because it is not just for the sake of it. It is really to give you all the important insights and help you take a very good decision, which will, a proper right decision, which doesn't leave any scope. कोई भी U-turn लेने का scope नहीं रहना चाहिए. अरे पापा मैंने ये choose कर लिया, लेकिन अभी मुझे मजा भी नहीं आ रहा है, मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा है, और मैं अभी चेंज कर रहा हूँ. तो हम लोग हमेशा वही ट्राई करेंगे कि आपका यू टर्न लेने वाला आपका नौबत नहीं है, वो सिचुएशन ही नहीं है, राइट. So first speaker is somebody whom grade 12 students have already interacted with. All the grade 12 students, I used to see them, they were so happy when they were learning economics from Harish sir. Yes or no? So सर ने बिना टेक्स्ट बुक खोले, बिना टेक्स्ट बुक का एक भी लाइन पढ़ाए हुए उनका पूरा कैपिटल मार्केट्स और जो भी मतलब फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का डिस्कशन था. अदरवाइज आई डोंट नो हाउ वी वुड हैव डन जस्टिस टू द टॉपिक, क्योंकि इतना नया है ग्रेड 12 के स्टूडेंट्स के लिए मनी एंड कैपिटल मार्केट. सडनली 11th से 12th में ये सब सिखाना, बट सर गेव देम सो मेनी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स एंड आई एम श्योर ऑल ऑफ देम एंजॉयड. So today sir is not going to teach you any topic. Sir is going to be guiding you about. Sir, we introduced you that time also that sir is a practicing chartered accountant. Okay, he is having more than 17 years of experience in financial markets. मतलब डिग्री तो उनका चार्टर्ड अकाउंटेंसी का है, लेकिन फाइनेंस में उनका ज्यादा एक्सपर्टाइज है और वो प्रैक्टिस कर रहे हैं 17 years से. दैट्स द रीजन अगेन मनी एंड कैपिटल मार्केट वाज अ चैप्टर व्हिच वाज dedicatedly given to Hari sir. He is practicing in the sense, see what sir is doing even today after 17 years also. He is constantly engaged in research work and he does corporate trainings. Corporate trainings होना मतलब banks में, companies में, बड़े बड़े MNC लेवल पे भी जो लोग फाइनेंस का काम कर रहे हैं, जो लोग फाइनेंस के पोजीशंस पे हैं, उनको पर्टिकुलर टॉपिक्स के बारे में ट्रेनिंग देना, उसको बोलते हैं कॉर्पोरेट ट्रेनिंग. सो दैट आल्सो हरीश सर इज डूइंग. ही इज अ स्पेशलिस्ट इन इक्विटी एंड डेरिवेटिव सेगमेंट्स, एंड अगेन इन दिस फील्ड आल्सो ही इज हैविंग मोर देन 12 years of experience. अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस, मतलब इतनी ट्रेनिंग, इक्विटी, डेरिवेटिव्स, रिसर्च, ये सब करने के अलावा सर की प्राइवेट जो प्रैक्टिस है, मतलब सर की जो प्राइवेट खुद की कंपनी है, उसमें सर वेल्थ और इन्वेस्टमेंट्स के बारे में अपने क्लाइंट्स को गाइडेंस देते हैं, राइट. सो दैट्स अ इन्वेस्टमेंट मैनेजर. जैसे अभी हमको मतलब
पैसा आ गया, बट वी नो दैट कि खाली बैंक में नहीं डालना है, कहीं और जगह पे इन्वेस्ट करना है जहां से हम ज्यादा मनी को ग्रो कर पाए. सो दैट इन्वेस्टमेंट गाइडेंस, उसके बारे में गाइडेंस देना और उसमें हेल्प करना, ऑल दैट इज ऑल्सो डन बाय हरीश सर इन हिज ओन कंपनी. So this is a short profile of Harish sir. आपको समझ में आ गया रहेगा कि within commerce also so many different fields sir is already handling. Second speaker for the day is again very happy and glad to announce the first thing about second speaker. His name is Mr. Pranav Tendulkar, and why I'm saying I'm glad and excited is he's a ex-Mennonite. है ना? So it feels so happy, though I have not taught Pranav. Anil sir and Uma miss have taught Pranav, and that is Pranav was with us, I think, when we had classes only near the IES school, है ना? संभाजी ग्राउंड के वहाँ पे जब सिर्फ वही ब्रांच थी मेनन की, तब से Pranav was with us. Pranav is ex-Mennonite and a merit rank holder. I remember seeing his posters, you know, classes में जब उनके इतने अच्छे results आए थे grade 10 में ही, तो हमारे Menon Edu World के banners पे, hoardings पे प्रणव के photos लगाए गए थे as merit rank holder. And why he's here with us today? He's here with us because he's an MBA in finance and a very successful again investment manager. So to talk about Mr. Pranav, he's worked as investment analyst, he's worked in hedge funds, he's worked in Canara Robeco mutual funds, he's again done research on sectors like IT, banks, financial institutions. He's also worked with IDBI asset management investment company. So और उनका जो MBA हुआ है, अभी MBA तो हम कितना सुनते हैं ना, मास्टर्स इन बिजनेस अभी बहुत कॉमन हो गया है, ठीक है, इसने भी MBA किया, उसने भी MBA किया, लेकिन जब हम लोग CA, MBA जब ये कोर्सेज करते हैं ना, तो सिर्फ डिग्री नहीं रहता है, उसका इम्पोर्टेंस किससे रहता है कि हमने कौन से एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से किया है ना? जैसे स्कूल्स में भी होता है, फ्रॉम विच स्कूल हैव यू स्टडीड, फ्रॉम विच कॉलेज हैव यू ग्रेजुएटेड. जब हम ऐसे भी क्वेश्चंस आएंगे आपको आगे जाके कि MBA किया, ठीक है, बहुत सारे MBAs हैं, तो आपने MBA कहाँ से किया? तो जब वो इंस्टीट्यूट इतना अच्छा होगा तो डेफिनेटली आपकी क्वालिटी, जो आपने पढ़ाई की है और आपका जो आउटपुट रहेगा वो भी उतना ही अच्छा रहेगा. So Mr. Pranav is an MBA from the very prestigious JBIMS, which is Jamnalal Bajaj Institute of Management Studies, and that too he's done his MBA after his engineering. So in fact he is a blend of science and commerce. You know, the peak of science is engineering and the peak of commerce is to do this masters in business administration. So that is again a very surprising combination. So Mr. Pranav आपको guidance देंगे कि MBA course मतलब कैसा है, क्या options हैं, and what will motivate you. Exactly, are you the MBA material? अगर आपको BMS, MMS ये करना है कि नहीं करना है, उसके बारे में वो आपको ज़्यादा guidance देंगे. And the third guest speaker is again from different field. अब CA जब भी हम सुनते हैं ना, तो CA के साथ immediately CS रहता है ना, CA CS ये एकदम joint रहता है, जैसे engineering और doctor एकदम joint courses है वैसे. तो CS is company secretaryship, and very glad to welcome and have with us Mr. Maharshi Ganatra. अब ये अनिल सर के साथ मतलब बहुत सालों से अनिल सर और इनकी जान पहचान है, और हमेशा जब अनिल सर भी इनके बारे में बात करते हैं या हमको भी इंट्रोड्यूस करते हैं, तो पहला सेंटेंस ये बोलते हैं, इज वन ऑफ द यंगेस्ट कंपनी सेक्रेटरीज इन इंडिया, राइट? टू क्वालिफाई फॉर दिस कोर्स, to complete this course at a very young age, he could successfully complete the CS course. He is a practicing CS because he has his own firm, just like Harish sir. He's also having his own CS firm. Along with this, the surprise is that Mr. Maharshi has done his CA and CS and LLB. So within commerce, सारे degrees आपको एक person में ही मिल जाएंगे, right? तो इतने special speakers से और ज़्यादा हम कुछ मांग भी नहीं सकते. So he is a CA, CS and LLB, but always we've been introduced like this only, talked about Mr. Maharshi like this, he is the youngest company secretaries to qualify for the course. He's having his own firm and about 15-20 people working with him, and always having clients from private sector and public sector companies also.
तो आई होप आपको तीनों के बारे में गाइडेंस आ गया होगा बेटा, क्योंकि पर्टिकुलरली सीए फील्ड से, फिर सीएस के फील्ड से और एमबीए के फील्ड से, ये 3 अलग अलग फील्ड से स्पेशलिस्ट आपके सामने हैं. But request to you students is don't only listen, okay? Please have a paper pen with you, keep jotting down, क्योंकि definitely ऐसे lectures और ऐसे webinars हम भी बार बार शायद न रख सके. So you have to make the maximum of this opportunity, and we will have a question and answer round, but that is towards the end. First you have to patiently listen, note down all the guidance that is being shared with you, and at the end, let's see, when the time permits, we will definitely open up the forum and allow you to ask your questions. Am I clear to you students? Again, if you can please come on chat and give me the confirmation कि आपको अभी तक सब समझ में आ गया है, then I will hand over to our guest for today. Okay, thank you. So may I request Harish sir, I don't have any set of questions, as I said कि हमने कोई questions ready नहीं किए हैं, and these children are at a very tender age. आपको मैंने age बता दिया है, grade 11 and grade 12. So kindly keep in mind sir, and over to you, you can share your guidance with them. Thank you. Thank you, ma'am. I'll just start my camera. Good evening, students. Good evening, everybody. 11th और 12th के students मेनन classes के, so 12th के बच्चों से मैं मिल चुका हूँ. So good evening to all 12th standard students, because मुझे आपके साथ 3 या 4 lecture interact करने का मौका मिला था. I don't know आपको अगर मैं याद हूँ कि नहीं, but मुझे वो sessions याद है जो I think 1 महीने पहले या उसके पहले हुआ था, if I am not wrong. Good evening Reshma ma'am, good evening all the faculty of Menon classes. Good evening Anil sir, I don't know Anil sir session में है कि नहीं. Good evening Maharshi. Maharshi is a dear friend and he's one of the best minds you will. Good evening, yeah. He's one of the best minds you will come across when it comes to his profession. When he starts talking, you will know that. I have not met Pranav. Good evening, Pranav. I have not met you before. I am looking forward to listening from you. Ma'am has described your amazing background, and I think we have a lot of similarity in between our profiles and career as such. But I would love to listen from your journey also. So I'll not keep both of you waiting for too long. मैं 15 मिनट लेता हूँ and मैं जल्दी से खत्म कर दूंगा, and then you can also start. मुझे नहीं पता आपके क्या points है. मैंने बच्चों के benefit के लिए, because I think many students are used to seeing something on the screen and continuously they cannot listen. तो मैंने उस point of view से एक छोटा सा set of slides बनाया है जो मैं share कर रहा हूँ. रेशमा मैम, can I do that? So upfront मैं आप सारे स्टूडेंट्स को ये बात बोलना चाहता हूँ कि मैं जब आपकी उम्र में था, एंड काश मैं आपकी उम्र में आज भी होता, एंड अभी काफी साल हो गए मैं आपकी उम्र में था, और मैं भी कॉमर्स स्टूडेंट हूँ. मैं भी 11th एंड 12th कॉमर्स ही किया. मुझे ऐसा लगता है, एंड आई कुड बी टोटली रॉन्ग, मैं आज भी बच्चों को पढ़ाता हूँ. मैं आज भी सीए फाइनल स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ एक कोचिंग क्लासेस के लिए. टीचिंग मेरा पैशन रह चुका है, जैसे अनिल सर का है, जैसे रेशमा मैम का है. मुझे ऐसा लगता है कि हमारे टाइम पे लाइफ बेटर था, कंपटीशन कम था. आई डोंट नो, महर्षि मेरे से बहुत ही छोटे हैं, सो आई डोंट नो व्हाट महर्षि's experience was. And again, I don't know how old Pranav is, but looks like he's much younger to me. But at least in my time, and I'm looking like the oldest person in this forum now, बहुत कम कंपटीशन था. ऐसा ज्यादा कंपटीशन नहीं था कि कट थ्रोट है, suddenly everybody is thinking about अभी क्या करना है, कैसे करना है. I think we had a pretty relaxed childhood as such. हमारे जमाने में अगर 10th में हमको 75% मिलता तो अच्छा स्कोर हुआ करता था. बट आज मैं किसी को पूछता हूँ 10th में कितना मिला, वो 75 ऐसे बोलते जैसे कि कोई डेथ हो गया हो घर पे. मतलब इतना दुख होके बोलते हैं कि 75% ही मिला है. मैं बोल रहा हूँ 75% कब से खराब हो गया. बोल रहा है टॉपर 99.9% पे आया है. बोला क्या 99.9%? हमारे स्कूल के टॉपर हुआ करते थे 80%, 79%, 81%. डिस्टिंक्शन वाज अ बिग थिंग ड्यूरिंग दोज डेज. अनफॉर्चुनेटली आपके लिए पिछले 15-20 साल से एजुकेशन इन्फ्लेशन काफी बढ़ गया इंडिया में. सो डिग्रीज जितना ज्यादा आपके पास है वो भी कम पढ़ने लग गए.
आज से 25 साल पहले अगर मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट था, कोई मुझसे ये नहीं पूछता था कि अच्छा सीए है, कौन सा अटेम्प्ट में पास हुआ, कौन सा रैंक मिला। आज सीए भी जॉबलेस है। आज चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास भी जरूरी नहीं कि उनके पास जॉब्स है, बिकॉज इतने सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स मार्केट में आ चुके हैं, इतने सारे एमबीए मार्केट में आ चुके हैं। 20 साल पहले आप बोलते थे मैं एमबीए था, लोग आपको एकदम प्राउडली देखते थे, वाह एमबीए है। आज वो पूछेंगे कौन से कॉलेज से एमबीए किया, क्या वो इंडिया का टॉप 10 कॉलेज में है, क्या वो रेप्यूटेड है जैसे जमनालाल बजाज जहाँ से प्रणव ने किया। आप बोलोगे ऐसा XYZ इंस्टीट्यूट, तो आपको फिर इंटरव्यू में नहीं बुलाएंगे। तो जैसा मैंने ये स्लाइड में जो फोटो रखा है, इट्स अ वेरी कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड आपके लिए, जो मैं नहीं चाहता हूँ मेरे लिए। मतलब मैं खुश हूँ कि मैं वो कंपटीशन से नहीं गुजर रहा हूँ, बट आपके लिए आई हैव अ लॉट ऑफ अंडरस्टैंडिंग दैट इट्स अ वेरी वेरी कॉम्पिटिटिव स्पेस आउट देयर। 85-90 is not good enough. Everybody is doing MBA, everybody is doing engineering, everybody is doing CA. So अगर आप ये सब नहीं करोगे तो there is a fear of missing out. आपको अपने आप में एक लगेगा कि आप लाइफ में कुछ कर नहीं रहे हो। सिर्फ ग्रेजुएशन करना इज अ पाप इन टुडेज वर्ल्ड। आपको कॉलेज में ऐसा बहुत कम लोग मिलेगा जो सिर्फ ग्रेजुएशन कर रहे हैं। हमारे जमाने में ग्रेजुएशन में सिर्फ ग्रेजुएशन ही करते थे, रेयरली कोई ग्रेजुएशन के साथ कोई और करता था। मैं जिस कॉलेज में था वहां पे मेरे अलावा सिर्फ 5 या 6 स्टूडेंट्स थे जो ग्रेजुएशन के साथ सीए करते थे। आज आई थिंक 5 या 6 ऐसे होंगे जो कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ ग्रेजुएशन कर रहे हैं। बाकी सब कोई सीए कर रहा है, कोई सीएस कर रहा है, कोई कुछ और तैयारी कर रहा है। तो बहुत कंपटीशन बढ़ गया है। तो मैं समझ सकता हूँ कि आपके ऊपर प्रेशर कितना होगा, आपके दिमाग में कंफ्यूजन कितना होगा। बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट स्टेट हो सकता है। मैं कोशिश करूंगा मेरे तरफ से कुछ इनपुट्स देने की, एंड पता नहीं कितना आपके लिए हेल्पफुल होगा, कितना हेल्पफुल नहीं होगा। और मुझे ये भी नहीं पता कि मेरे व्यू से शायद दूसरे पैनलिस्ट अग्री नहीं करे। ऐसा भी हो सकता है कि हमारा व्यू सब अलग है, हमने कुछ एक दूसरे से बात नहीं किया है कि हम लोग एज अ टीम आपसे बात करेंगे। हम अपना अपना व्यूज प्रेजेंट करेंगे। मैं और शायद महर्षि एकदम ऑपोजिट व्यू बताएंगे आपको, ऐसा हो सकता है। आप जजमेंट यूज कीजिए कि आपको क्या ठीक लगता है आपके लिए, बिकॉज आई डोंट थिंक हम में से कोई भी करियर काउंसलर्स है। आपका पर्सनालिटी क्या है, आपका एप्टीट्यूड क्या है, वो हमें नहीं पता। हम सिर्फ हमारा जर्नी शेयर कर सकते हैं। एटलीस्ट मैं तो सिर्फ वही करने वाला हूँ। मैं जब आपकी उम्र में था 11th स्टैंडर्ड में, मुझे 10th में मिला था 79%, जो उस जमाने में बाय द वे बहुत अच्छा था। डोंट जज मी। बहुत ही अच्छा परसेंटेज हुआ करता था 79। कोई मुझे ऐसा देखता नहीं था कि क्या यार कितना कम लेके आया। कॉमर्स क्यों लिया मैंने? बिकॉज साइंस में मुझे इंटरेस्ट नहीं था, बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। आई वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन साइंस। तो एक लॉजिकल फील्ड बच गया कॉमर्स। एंड उन जमाने में 79 वॉज अ परसेंटेज फॉर साइंस ऑल्सो, मिल जाता था। बट मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए मैंने कॉमर्स लिया। ऐसा नहीं कि कॉमर्स में मुझे कुछ पता था, बट एटलीस्ट मुझे ये मालूम था कि साइंस मुझे नहीं करना है। बहुत बार लाइफ में आपको क्या नहीं करना है उसका क्लैरिटी भी होगा तो चलेगा। आपको क्या करना है शायद नहीं पता है, बट एटलीस्ट आपको मालूम है आपको क्या नहीं करना है। एटलीस्ट दैट मच क्लैरिटी यू शुड हैव। एक गलती किया मैंने 11th ज्वाइन करते करते, जो मैं अभी भी रिग्रेट करता हूँ। मैंने मैथमेटिक्स नहीं लिया 11th 12th में। मेरे एक कजिन भाई थे, एल्डर कजिन ब्रदर, उनको मैथ्स नहीं पसंद था। ही वॉज पथेटिक इन मैथमेटिक्स, ही वॉज वेरी वेरी बैड इन मैथमेटिक्स। उनको डर था मैथमेटिक्स का। उन्होंने वो डर मेरे दिमाग में डाल दिया। उन्होंने बोला मैथमेटिक्स मत ले, तेरा पूरा पढ़ाई का बैंड बजेगा, कुछ आता नहीं है, कुछ भी क्वेश्चन पूछेंगे। आई वॉज ब्रिलियंट इन मैथमेटिक्स इन स्कूल। एंड पता नहीं मुझे अभी भी वो सोचता हूँ कि मैंने क्यों वो इन्फ्लुएंस से डिसीजन लिया। मैंने मैथ्स नहीं लिया, एंड उसका मुझे आज भी रिग्रेट है। आज आफ्टर सो मेनी इयर्स आई थिंक मैथमेटिक्स शुड हैव चेंज्ड मी इन अ लॉजिकल वे। मेरा सबसे ये अपील है, मैथ से डरिए मत। मैथ इज वन ऑफ द मोस्ट लॉजिकल थिंग्स दैट यू शुड नो। मार्क्स के लिए नहीं, एग्जाम के लिए नहीं, लॉजिक के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इज मैथमेटिक्स। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आगे चल के आपकी लाइफ में ट्रिग्नोमेट्री काम आएगा या पाइथागोरस काम आएगा, बट लॉजिक काम आएगा। लॉजिक ऐसा चीज है जो आपको पढ़ाया नहीं जा सकता है। सो आई डोंट नो आप मैथ्स ले रहे हो या नहीं ले रहे हो। अगर आप मैथ्स नहीं भी ले रहे हो, आप एसपी स्टूडेंट हो, मैथ्स से दूर मत भागिए। आपका 10th तक मैथ्स था, कुछ ना कुछ करते रहिए। अलजेब्रा में कुछ लॉजिकल प्रॉब्लम कर लीजिए, कुछ इक्वेशन सॉल्व कर दीजिए। एग्जाम के लिए नहीं, जस्ट लॉजिक बिल्डिंग करने के लिए। वही कजिन ब्रदर जिसने मुझे मैथ्स का डर बिठाया मेरे दिमाग में, वो सीए कर रहा था, चार्टर्ड अकाउंटेंसी। वो पढ़ता था,
he was much elder to me. मैं देखता था वो क्या पढ़ रहा है, वो बोलता मैं सीए कर रहा हूँ, सीए बहुत टफ कोर्स है, ये है वो है. I was from a lower middle class family. I was not from a very well-to-do family. And CA का सबसे बड़ा फायदा था CA कोर्स का, उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं लगता है, ज्यादा पैसा नहीं लगता CA कोर्स करने के लिए. अगर आप कोचिंग क्लासेस जाते हो तो कोचिंग क्लासेस का कॉस्ट आएगा, बाकी CA इंस्टीट्यूट का कुछ ज्यादा खर्चा तो था नहीं उस टाइम पे. तो पूरा का पूरा एजुकेशन आपका ज्यादा पैसे के बिना निकल सकता था. दैट इज व्हाई आई चोज टू डू CA. फ्रॉम अ फैमिली बैकग्राउंड पॉइंट ऑफ व्यू, आई थिंक दैट वुड बी अ गुड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. तभी भी मुझे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की समझ थी कि इतना कोर्स में मुझे कितना सैलरी मिल सकता है. मैं 12th या फर्स्ट ईयर से मैं सोचना चालू किया कि CA का स्कोप क्या है, आगे चल के सैलरी कितना मिलेगा. टू बी ऑनेस्ट, मैं पहले सैलरी के बारे में सोच रहा था बिकॉज माई फैमिली वॉज डिपेंडेंट ऑन मी इन टर्म्स ऑफ द फाइनेंशियल डिपेंडेंसी. मैं सोचता था कितना स्टार्टिंग सैलरी होगा, एंड इट वॉज गुड. इट वॉज नॉट अ बैड स्टार्टिंग सैलरी एट ऑल. ऑफ कोर्स नॉट इवन कंपेरेबल टू व्हाट इट इज नाउ, बट ड्यूरिंग दोज डेज इट वॉज अ प्रीटी गुड सैलरी. इसलिए मैंने CA करना स्टार्ट किया, जो आपके लिए भी एक ऑप्शन है. सो अगर मैं आपको डिग्रीज के बारे में बताऊं, जो आई थिंक दूसरे स्पीकर्स भी बोलेंगे, बट शायद मैं उनका टाइम सेव करूंगा बाय टॉकिंग अबाउट सम ट्रेडिशनल कोर्सेस लाइक चार्टर्ड अकाउंटेंसी, CWA, CS. जब मैं कर रहा था या जब महर्षि कर रहे थे, शायद दुनिया अलग था, बट अभी ये ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो चुका है. एवरीबडी इज डूइंग CA, CWA और CS. मुझे ऐसा लगता है that the value of these courses have gone down and you need to struggle a lot more to get the best out of these courses. So I'm not saying the courses are not good. I'm simply saying that आपको मैंने जितना मेहनत किया उससे ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा अभी to extract the same thing out of this course, because ज्यादा बच्चे CA कर रहे हैं, ज्यादा बच्चे CWA पास हो रहे हैं, ज्यादा CS मार्केट में आ रहे हैं. ऑटोमेटिकली डिमांड सप्लाई का इक्वेशन इज चेंजिंग. सो अगर आप में से कोई भी CA या CW या CS के बारे में सोच रहा है, एंड अगर आपने सुना है कि ये टफ है, पास होना मुश्किल है, मैं तो नहीं बोलूंगा कि टफ है. आई एम नॉट सेइंग इट्स अ टफ कोर्स. बोरिंग जरूर है. आई फाउंड द कोर्स बोरिंग, एंड मैं अपने लिए बोल रहा हूँ. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अदर पैनलिस्ट. महर्षि में किल मी फॉर सेइंग दिस. आई फाउंड द CA कोर्स टोटली बोरिंग. एक सब्जेक्ट मुझे पसंद था, 6 सब्जेक्ट पसंद नहीं थे, बट मुझे पास होने के लिए सारे सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता था. मुझे टैक्सेशन बिल्कुल नहीं पसंद था, मुझे लॉ बिल्कुल नहीं पसंद था, जो महर्षि सर का स्ट्रॉन्ग फील्ड है. मुझे पसंद था फाइनेंस, मुझे पसंद था फाइनेंशियल मार्केट, बट वो एक ही सब्जेक्ट था. मेरे पास बाकी और भी सब्जेक्ट मुझे पढ़ाई करने थे. सो मेरे लिए वो जर्नी काफी बोरिंग था. What helped me, what saved me through that journey is my articleship. CA का सबसे बड़ा USP, सबसे बड़ा बेनिफिट इज आर्टिकलशिप. जो आप 3 साल का आर्टिकलशिप करते हो, वो मेरे हिसाब से उस कोर्स का सबसे बड़ा फायदा है. बहुत सारे CA स्टूडेंट्स हैं जो आप शायद सीनियर्स को मिलोगे, जो आर्टिकलशिप के बारे में रोते हैं. मेरे लिए उल्टा है. मेरे लिए आर्टिकलशिप इज द बेस्ट पार्ट अबाउट दैट कोर्स. तो अगर आप CA कर रहे हो, प्रैक्टिकली 3 साल आर्टिकलशिप एंजॉय करके, अगर आपको लगता है आप 4 साल 5 साल मेहनत कर सकते हो, मेहनत, दिमाग की बात नहीं है. डजंट रिक्वायर टू मच इंटेलिजेंस. आई एम नॉट इंटेलिजेंट. उसमें दिमाग नहीं लगता है, मेहनत लगता है. यू नीड टू बी अ स्टूडेंट हु कैन स्टडी कंसिस्टेंटली. यू नीड टू बी अ स्टूडेंट हु कैन वर्क हार्ड. brains, intelligence, cracking a big cat like Pranav will talk about later, that requires intelligence. CA पढ़ाई में intelligence कम लगता है, मेहनत ज्यादा लगता है. You need to have the patience to go through thousands of pages of material to read. Do you have that kind of patience? क्या आपके अंदर इतना ज्यादा पढ़ाई करने का patience है? अगर है, CA आज भी एक relevant course है. महर्षि will talk more about CWA, CS because मैंने वो किया नहीं है. मैंने सिर्फ CA किया हुआ है, एंड बाद में मैंने CFA किया हुआ है, जो मैं बोलूंगा चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट. बट जब मैं CA कर रहा था, मुझे बोरिंग लगा. मैं CA स्टूडेंट्स को आज भी पढ़ाता हूँ. 90% CA स्टूडेंट्स को वो कोर्स बोरिंग लगता है आज भी. बोरिंग, नॉट टफ. बहुत डिफरेंस है दोनों में. IPL जीतना is probably tough. IPL चल रहा है इसलिए बता रहा हूँ. IPL जीतना is probably tough. But do the players find it boring? I don't think so. CA is not a tough course. It's a boring course for a lot of students. तो अगर आपको पढ़ाई नहीं पसंद, आपको इतने सारे सब्जेक्ट को नहीं देखना अच्छा लगता है, CA is definitely not for you. आप बहुत 4-5 साल मेहनत करोगे एंड फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, बिकॉज उसके अंदर 8 मेजर सब्जेक्ट्स है. आपको ऑलमोस्ट
8 सब्जेक्ट में डेप्थ लेना पड़ेगा। तो आप सोच समझ के ज्वाइन कीजिए सीए। अगर आपको पढ़ाई पसंद है, आप 2-3 घंटे रोज पढ़ाई कर सकते हो, डेफिनेटली कीजिए, आप पास भी हो जाओगे। आपको पढ़ाई नहीं पसंद है, आपको लगता है यार इतना सब्जेक्ट क्यों करना है, आई डोंट थिंक सीए इज अ कोर्स फॉर यू। बट ये मत सोचिए इंटेलिजेंस चाहिए, परसेंटेज ज्यादा होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा बिल्कुल कुछ भी नहीं है। मैंने बहुत बच्चों को देखा है मेरे 17 साल के टीचिंग करियर में, जिनका 10th का स्कोर वाज नॉट गुड बट दे हैव क्लियर्ड सीए। मैंने उनको भी देखा है जिनका 10th का स्कोर बहुत ज्यादा है, they did not clear CA. So it's not about marks, it's about mindset. Are you equipped for something like that? So आप ये अपने बारे में सोचिए कि आपको पढ़ाई पसंद है या आपको थोड़ा ऐसा एरिया चाहिए जहाँ पे कुछ सोचना पड़ेगा आपको। दूसरा कोर्स जो आपके लिए अभी यूजफुल नहीं है, अभी आप 11th एंड 12th में हो, मे बी 2-3 साल के बाद जब आप ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर तक आओगे, तो आप ये सोच के रख सकते हो, अगर आपको इंटरेस्ट है फाइनेंस की दुनिया में, जिसके बारे में अगेन प्रणव ज्यादा बात करेंगे आपसे, यू कैन डू समथिंग कॉल्ड चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट, CFA। एक इंडिया का CFA कोर्स है, या एटलीस्ट हुआ करता था, पता नहीं अभी है कि नहीं है, वो मत कीजिए। देयर इज अ ग्लोबल CFA कोर्स जो अवेलेबल है। गुड थिंग, एक्सेप्टेबिलिटी अच्छा है, ग्लोबली कहीं पर भी जाओ CFA का एक क्वालिटी है, एक नाम है, एक डेजिग्नेशन का वैल्यू है। बैड थिंग दो है, एक एक्सपेंसिव कोर्स है। अब मैं बोल रहा हूँ एक्सपेंसिव, अभी कितना एक्सपेंसिव है अभी डिपेंड करता है हमारा बैकग्राउंड क्या है। अगर आप एक टिपिकल मिडिल क्लास फैमिली से आते हो, आप हर एग्जाम के लिए CFA का 3 लेवल है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, आप तीनों लेवल पास करते करते कोचिंग भी लोगे, बुक्स भी यूज करोगे, मेरे हिसाब से 2-3 लाख रुपए आपका इन्वेस्टमेंट होगा, 2 to 3 लाख रुपीज इन्वेस्टमेंट। सक्सेस रेशियो क्या है? अबाउट 30 to 40%, बेटर देन CA सक्सेस रेशियो, बट स्टिल ट्रिकी, बिकॉज यहाँ पे आपको बहुत लॉजिक लगेगा, आपका एग्जाम विल नॉट बी, आप बाय हार्ट करके नहीं जा सकते, आपको बहुत सारा सोचना पड़ेगा। यू नीड टू जेन्युइनली लाइक फाइनेंस। अगर आपको फाइनेंस नहीं पसंद है, CFA इज नॉट अ यूजफुल कोर्स फॉर यू। और एक साइड इफेक्ट आया है इंडिया में, टू मेनी CFAs अराउंड, एंड दिस इज व्हाट आई सी व्हेन आई गो टू कॉर्पोरेट्स फॉर ट्रेनिंग। मैं लेता हूँ कॉर्पोरेट ट्रेनिंग, म्यूचुअल फंड्स के लिए, बैंक्स के लिए, इंश्योरेंस कंपनीज के लिए। Every second person is either a CFA or doing a CFA. Not bad, but overall value comes down because of that degree. जब मैंने CFA किया आज से 12 साल पहले, there were very few CFAs in the market. So CA-CFA combination was like, wow, superb. आज CA-CFA मेरे बच्चे हैं। मैं जिन बच्चों को पढ़ाता हूँ वो CA फाइनल में है और उनका CFA 2 लेवल हो चुका है। वो जब तक CA बनेंगे उनका CFA हो गया होगा। मेरे ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं। What is the value of that same combination now? Because simple economics, demand supply, value has gone down. CFA is a brilliant course. मैं सबको रिकमेंड करता हूँ, जिसको फिनांस पसंद है, जॉब मिले नहीं मिले, करियर में बदलाव आए नहीं आए, उसके बारे में बोलूंगा और ज्यादा। इट्स अ ब्रिलियंट कोर्स इन इटसेल्फ, ऐसा मेरे को लगता है CFA। So मैं सबको रिकमेंड करता हूँ, अगर आपको फिनांस पसंद है, ये कोर्स आपको काफी हेल्प कर सकता है, लेकिन इजी नहीं है। इट्स नॉट अ वेरी इजी कोर्स, एक्सपेंसिव भी है। अगर आप अटेम्प्ट फेल हो जाओगे तो सीधा 60-70,000 रुपीज का आपको फटका लगेगा। पूरा CA का कोर्स आपका 60-70,000 में हो जाएगा। सो नॉट कंपेरेबल इन टर्म्स ऑफ योर कॉस्टिंग। देयर इज ऑल्सो अ डिग्री जो आपको अभी काम नहीं आएगा, बट आप जब ग्रेजुएशन की तरफ जाओगे, आप एक डिग्री के बारे में सोच के रख सकते हो। आप लिख के रख लीजिए, खुद थोड़ा रिसर्च कीजिए, फाइनेंशियल रिस्क मैनेजर, FRM। ये 2 एग्जाम का कोर्स है, लेवल 1, लेवल 2। आप देख लीजिए, दिस इज अ गुड एरिया जो बहुत ही ज्यादा स्कोप आपको दे सकता है, और वो है रिस्क मैनेजमेंट। तो आप अगेन, आप 11th एंड 12th में ये नहीं कर पाओगे। 11th 12th के बाद आपको ये सोचना है कि क्या आपको CA, CWA, CS करना है या नहीं करना है। जैसे मैंने बोला, CA थोड़ा बोरिंग कोर्स है, कर सकते हो, 4-5 साल में CA बन जाओगे। पर आपने बहुत लोगों को देखा होगा जो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, पास नहीं होता है। उसका रीजन ये नहीं है कि वो इंटेलिजेंट नहीं है, रीजन ये है कि वो बोर हो जाता है। सी, ह्यूमन माइंड बोरिंग चीज नहीं करेगा, वो दैट्स हाउ सबकॉन्शियस माइंड वर्क्स। आपको कोई चीज बोरिंग लगेगा, आप थोड़ा करोगे, बाद में छोड़ दोगे। कोई भी हो, आपको डिश, अगर आपको कोई डिश बोरिंग लगेगा, खाना आप नहीं खाओगे, यू विल नॉट एंजॉय दैट फूड। आपको कोई मूवी बोरिंग लगेगा, आप नहीं देखोगे वो मूवी बार बार। ऐसा मुझे टैक्स पढ़ना पड़ता था, आई डोंट नो हाउ आई क्लियर डायरेक्ट टैक्स, जस्ट पास, आई एम अ जस्ट पास CA। 400 मार्क मिनिमम चाहिए, मैंने 400 मार्क लेके आया।
टैक्स एंड लॉ मेरे सब्जेक्ट्स के मार्क्स को ड्रैग किया, बिकॉज मुझे बिल्कुल नहीं पसंद था वो कोर्स, बिल्कुल नहीं पसंद था। मतलब मुझे आज भी कोई बोलेगा टैक्स या लॉ, मैं महर्षि को फोन करूंगा, महर्षि मुझे बताएगा कि क्या करना है, बिकॉज नाउ वी हैव स्पेशलिस्ट अराउंड। महर्षि के लिए लॉ इज लाइक, आई थिंक, इज सेकंड नेचर। कोई भी सेक्शन, कोई भी लॉ, ही वुड नो इट। आई डोंट, एंड आई एज ऑफ नाउ डोंट रिग्रेट नॉट नोइंग इट। तो सोच के कीजिए सीए, बिकॉज वो सबके लिए नहीं है, इट्स नॉट फॉर एवरीबडी। If you like studying, good for you. You can be a chartered accountant. I'll go on for the next few minutes. I will not personally talk about MBA when we have a Jamnalal Bajaj MBA sitting in the forum. So I'll leave it to Pranav. But MBA is obviously an option. Not now, but you can plan for it. I think मेरे को ऐसा लगता है कि आपको अगर MBA करना भी है, उसका प्लानिंग 1-2 साल पहले से शुरू करोगे, I think you will be able to get to the better colleges in a good way, rather than आप 1 महीने पहले डिसाइड करोगे चलो मैं जाके कैट देता हूँ। आई डोंट थिंक दैट विल बी अ गुड स्ट्रेटजी, बट अगेन आई विल लीव इट टू प्रणव टू स्पीक अबाउट दैट। वर्ल्ड बदल गया है, न्यू एज लर्निंग, हम भी जूम में बात कर रहे हैं। आई थिंक लास्ट ईयर का करियर प्लानिंग सेशन में महर्षि 1-2 और जन हम मेनन क्लासेस के लिए फिजिकली किए थे, मुझे याद है। इट वाज इन ऑडिटोरियम इन मुलुंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, व्हिच वाज लास्ट ईयर। आज हो रहा है ऑनलाइन। सो दिस इज कॉल्ड न्यू एज, द न्यू नॉर्मल। एंड मुझे ऐसा लगता है डिग्रीज आर ओवररेटेड कॉन्सेप्ट गोइंग फॉरवर्ड। पीपल आर मूविंग फ्रॉम डिग्रीज टू स्किल्स। स्किल्स, गिग इकोनॉमी, आप गूगल करके देख लेना, गिग इकोनॉमी, GIG, गिग इकोनॉमी इज द फ्यूचर। आपको एक चीज अच्छे से आता है, आपके पास कोई डिग्री नहीं है, बट आपको एक चीज बहुत अच्छे से आता है, यू कैन स्टिल मेक अ गुड लाइवलीहुड एंड प्रोफेशन आउट ऑफ इट। कोई डिग्रीज के बारे में आजकल नहीं पूछता है जितना आज से 10-15 साल पहले पूछता था। आई थिंक पर्सनली डिग्रीज आर गेटिंग ओवररेटेड। स्किल्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू हैव। स्किल्स, जॉब स्किल्स, क्या आपके पास रेलेवेंट जॉब स्किल्स है कि नहीं है, उसके लिए आपका खुद का न्यू एज लर्निंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है। ये मैं सारे स्टूडेंट्स को बोलता हूँ, प्लीज आपको जितना हो सके प्रैक्टिकल नॉलेज हासिल कीजिए। आप कॉलेज में जाओगे, कॉलेज उतना हेक्टिक नहीं होने वाला है। आपको सीए में इंटरेस्ट नहीं है, कोई बात नहीं, मेरा सजेशन है डू इंटर्नशिप्स। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन को इंटर्न्स की जरूरत है। आप जाओ, बोलो मुझे पैसा नहीं चाहिए, आपको मुझे सिर्फ कम्यूटिंग का पैसा दे दो। आजकल तो ऑनलाइन भी काम हो रहा है, मुझे सिर्फ सीखना है। दैट इज द ओनली ऑब्जेक्टिव आई हैव। इंटर्नशिप्स 2-2, 3-3 महीने का अलग अलग छोटा छोटा इंटर्नशिप करो, 6 महीने का, आपको बहुत सीखने को मिलेगा क्या क्या एरियाज है। in my firm at Zone Capital, I offer internship to anybody who wants. They can come and say, हमको बताओ क्या कर सकता हो, because उससे आपको पता चलेगा कि क्या क्या एरियाज है एंड क्या एरियाज नहीं पसंद है, क्या एरियाज पसंद है। So try doing that, because that's a practical way of learning is what I would suggest. Second is online courses. I'm sure आप घर पे बैठे हो, आपके पास इंटरनेट कनेक्शन है, thanks to मोटा भाई मुकेश अंबानी, Jio is making internet very cheap. Online courses, Udemy, Coursera, LinkedIn Learning, tremendous value you can get from these online courses. Read about anything that you want to know about. You want to know about digital marketing, सीख लो। आपको जानना है Python, सीख लो। आपको जानना है valuation, सीख लो। आपको जानना है Excel, सीख लो। सब कुछ अवेलेबल है मोबाइल फोन में, लैपटॉप में। आपको कोई डिग्री की जरूरत नहीं है सब सीखने के लिए। अभी आप डिसाइड करो आपके टाइम पे जब आपको पढ़ना है क्या पढ़ना है। Absolutely brilliant thing which has come due to the last few years technologies, online courses keeps you upgraded, tells you what is good, what is not good. I will strongly recommend that. Jobs तो बहुत है, काफी सारे ऑर्गेनाइजेशंस हायर करते हैं। मैंने सिर्फ आपको एक बुटीक लिस्ट दिया हुआ है। मैंने कुछ बैंक्स में काम किया है, मैंने म्यूचुअल फंड में काम किया है। प्रणव हैज वर्कड इन म्यूचुअल फंड लाइक रेशमा मैम इंट्रोड्यूस। सो बहुत सारे जॉब्स है, ऐसा नहीं कि जॉब्स नहीं है, बट स्किल ओरिएंटेड हो गए। अभी ऐसा नहीं कि आपकी डिग्री है तो जॉब है, डिग्री के साथ साथ स्किल क्या है। मेरे बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अनएम्प्लॉयड है, बहुत सारे Tier 2 Tier 3 MBAs अनएम्प्लॉयड है। क्यों? बिकॉज उनके पास डिग्री है, उनके पास कोई स्किल नहीं है। They don't have the relevant skills, I believe, when they want to get a job. So please focus more on skills. आप देखो आपके पास skills कितना है, उसके हिसाब से you can keep looking at things. What are the skills I am talking about? I will not take much time. मैं बाद में Q&A ले सकता हूँ. What are the skills I am talking about? And again, I'm not getting much into this part.
स्किल्स इज रियल टाइम नॉलेज, प्रैक्टिकल नॉलेज. आपको जितना कोई भी चीज हो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कॉमर्स और एनीथिंग दैट यू वांट टू नो द प्रैक्टिकल साइड ऑफ थिंग्स. जितना हो सके प्रैक्टिकल नॉलेज हासिल कीजिए, नॉट द एकेडमिक नॉलेज ओनली. Academic knowledge will give you degrees. Practical knowledge will give you the skill to kind of solve a problem. End of the day, every job has to solve a problem. Whatever you do, you have to add value in the form of problem solving. So again, internship will help you in doing this. Internship में आपको practical चीजें करने को मिलेंगी. मुझे टैक्स बिल्कुल नहीं पसंद था. मैंने मेरे पूरे 3 साल के आर्टिकलशिप में, जब मैं सीए कर रहा था, मैंने टैक्सेशन का कुछ भी नहीं किया. मैंने ना आईटी रिटर्न्स फाइल किया है मेरे आर्टिकलशिप में, मैंने कुछ भी नहीं किया है. मुझे इंटरेस्ट नहीं था. बट बहुत बच्चों को उसमें इंटरेस्ट है. वो प्रैक्टिकली ये सब नॉलेज हासिल करते हैं बाय वर्किंग विद सीए, वर्किंग विद सीएस, वर्किंग विद रिसर्च फर्म. एक इन्वेस्टमेंट रिसर्च फर्म के पास जाइए, बोलिए मैं सेकेंड ईयर में हूँ, आई नो लिटिल बिट ऑफ कॉमर्स, इज देयर समथिंग आई कैन डू फॉर यू. रेफरेंस यूज कीजिए, रेफरेंस नेटवर्क, सीनियर से बात कीजिए. कहीं ना कहीं से इंटर्नशिप लेने को देखिए, जिससे आपको प्रैक्टिकल स्किल मिलने का चांस है. पैसे के लिए नहीं, नॉलेज के लिए, बिकॉज रियल लाइफ नॉलेज विल बी वेरी यूजफुल. मुझे ऐसा लगता है, आई कुड बी टोटली रॉन्ग, एज आई सेड आई मे नॉट नेसेसरली बी अग्रीड अपॉन बाय एनीबॉडी. कोडिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्किल दैट यू कैन लर्न, जिसका आगे बहुत यूज आ सकता है. कोडिंग एंड डेटा एनालिसिस, सो थिंग्स लाइक आर, थिंग्स लाइक पाइथन, एनीथिंग जहां से आपका लॉजिक डेवलप होगा. दैट्स लिए मैंने पहले आपको मैथ्स भी बोला, लॉजिक. बिकॉज बहुत सारे जॉब में अगर आप लॉजिकल हो, आपको शायद ज्यादा छूट मिल जाएगा टू रीच समवेयर, टू गेट इनटू अ लेवल. एंड आपको शायद बिलीव नहीं होगा, बट मेरे एक्सपीरियंस में लॉजिक इज अ वेरी अनकॉमन थिंग नाउ. एवरीबडी जस्ट हैज डिग्री, दे आर नॉट थिंकिंग लॉजिकली, दे आर नॉट रीजनिंग इट इन एनी वे. सो कोडिंग एंड डेटा एनालिसिस आई थिंक विल बी वेरी यूजफुल. कोई बड़ा पैसा देके कोर्स करने की जरूरत नहीं है. उडेमी, कोर्सेरा में फ्री कोर्सेस है. 300 रुपया, 400 रुपया मैक्सिमम में आपको कोडिंग मिल जाएगा, पाइथन मिल जाएगा. आप सीख सकते हो. नहीं पसंद आया कोई बात नहीं, 400-500 रुपया वेस्ट हो गया. बट कहीं ना कहीं आपको पता चल गया कि कोडिंग आपको इंटरेस्ट नहीं है. कोडिंग इंटरेस्ट लग रहा है. फिनांस प्लस द टेक्नोलॉजिकल कोडिंग एज दैट यू कैन गेट कैन क्रिएट अ टेक्नो फंक्शनल रोल, which is very much needed in today's world. Data analysis is the new age thing in the world of finance also. Very rare to see ability to think logically. ये आपको ट्रेन करना पड़ेगा माइंड में, बिकॉज हमारा एजुकेशन सिस्टम इज ऑल बाय हार्ट करो, एग्जाम में जाके क्वेश्चन बैंक में से एग्जाम में क्वेश्चन लिख दो. हाउ डू यू थिंक लॉजिकली? बहुत सारे गेम्स है, बहुत सारे कोर्सेस है अगेन ऑन दिस पार्ट ऑल्सो. कीप योर माइंड शार्प, बिकॉज आपका जित तक माइंड शार्प है, आप बहुत सारा चीज आगे खुद से कर पाओगे. आई वुड वांट यू टू थिंक ऑन दिस ऑल्सो इन अ वेरी स्ट्रांग वे. राइटिंग स्किल्स कुछ प्रोफाइल के लिए, अगर आप इन्वेस्टमेंट रिसर्च पे जाना चाहते हो, अगर आप कंटेंट डेवलपमेंट करना चाहते हो, राइटिंग स्किल्स कुड बी वेरी रेलेवेंट फॉर यू. राइटिंग कोई भी लैंग्वेज हो, इंग्लिश, हिंदी, मराठी, राइटिंग. नाउ इफ यू लाइक राइटिंग, डेवलप ऑन इट. राइट अ ब्लॉग, लिंक्डइन में आइए, लिंक्डइन का प्रोफाइल बनाइए, FYSY में लोगों से नेटवर्क करना स्टार्ट कीजिए. आप एक छोटे से दुनिया में मत रहिए. आप मुलुंड में है, थाने में है, ठीक है, पर दुनिया काफी बड़ा है. सो नेटवर्किंग के लिए यू कैन यूज ऑल ऑफ दिस प्लेटफॉर्म्स. मेरे हिसाब से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल इज पीपल स्किल. मेरे हिसाब से, आई कुड बी टोटली रॉन्ग, बट जितना आपको करियर में आगे जाना है, स्पेशली इन द कॉर्पोरेट लाइफ, आपको अगर काम करना है, जॉब करना है और उसमें आगे जाना है, people skill will be very important. How to delegate, how to handle different type of people, how to create a rapport with everybody you meet, how to blend into a team. Teamwork क्या होता है? मैंने कितने लोगों को देखा है जो individually brilliant है, उनको एक टीम में डाल दो, वो टीम को खराब करके निकलेगा. They are not good for teams, and you can't really have such people in the career profile. So interpersonal skills I believe is very important. रीडिंग स्किल्स, लोगों ने रीडिंग करना छोड़ दिया है. आज ही सुबह मेनन मंत्रास में अमृत देशमुख आए थे. आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू अटेंडेड अ सेशन इन द मॉर्निंग. अमृत सेड he wants to make India read, right? That's his mission. Reading is very important because I personally believe आप डिग्री हासिल कर दिए, 20 साल हो गया, 20 इयर्स के आप हो, आप काम करोगे 60 इयर्स तक, जियोगे शायद 80 इयर्स तक. मेरे लाइफ का मैं एक्सपीरियंस बताता हूँ. आई थिंक मैंने 70-80% नॉलेज हासिल किया रीड करके, एज कम्पेयर टू जो मैंने सीए के टाइम पे या ग्रेजुएशन के टाइम पे हुआ है. एनी प्रोफेशनल हु ग्रोज रीड्स अ लॉट, रीड्स a lot of things.
तो अगर आपको रीडिंग पसंद है, इट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल जो आपको आगे लेके जाएगा, जो आपको अलग करेगा भीड़ से, बिकॉज रीडिंग से आपको जो नॉलेज मिलेगा, पर्सपेक्टिव मिलेगा, वो शायद आपको लाइफ में और कोई चीज से नहीं मिलेगा. सो रीडिंग इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्किल, एंड आई एम नॉट इवन टॉकिंग अबाउट मार्क्स एंड ऑल दैट. इट इज ऑल द other important skills I am talking about. Excel, Microsoft Excel, I think it is used everywhere now. Very useful. Be good in Microsoft Excel. I know of computer courses where Excel मतलब फाइल ओपन करना, फाइल को रीनेम करना, फाइल सेव करना, फाइल बंद करना. एक्सेल में बहुत कुछ है जिसका आपका लाइफ में बहुत फायदा हो सकता है. आपका टाइम बचेगा, आपका प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होगा. सो बी वेरी वेरी गुड इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल. अलग अलग कोर्सेज अवेलेबल है, ब्रिलियंट कोर्सेज अवेलेबल है ऑन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स. कहीं जाने की जरूरत नहीं है. ये सब आप नेक्स्ट 2-3 साल में, बाय द टाइम यू आर ग्रेजुएटिंग, ये सब चीजों में ध्यान दीजिए. साइड बाय साइड कोर्स एंड डिग्री चल रहा है, बट जॉब स्किल्स, अपने आप को और कितना एम्प्लॉयबल कर सकते हो. एम्प्लॉयबल, गिव 15 रीजंस फॉर द एम्प्लॉयर टू हायर यू. उसको सोचने को मत लगाओ इसको मैं क्यों हायर करूं. आप बोलो मैंने इंटर्नशिप भी किया है 4, मुझे एक्सेल भी आता है, मेरे को ये भी आता है, मेरे को वो भी आता है. बोलो आपको और क्या चाहिए, एंड मेरे पास डिग्री भी है. डिग्री तो शायद वो लास्ट पूछेगा जब इतना सब आपके पास स्किल्स है. स्किल्स, सो डेवलप स्किल्स एज मच एज पॉसिबल. यूज लिंक्डइन. लिंक्डइन इज अ वंडरफुल प्लेटफॉर्म. अभी शायद आप ज्वाइन नहीं किए होंगे, आप छोटे हैं, बट आप 12th FY SY जब जाओगे लिंक्डइन यूज करो, सीखो, वहां से लोगों को फॉलो करो, लोग क्या बोल रहे हैं. करियर के लिए भी काम आएगा, जॉब के लिए भी काम आएगा. काफी सारे लोग लिंक्डइन में बहुत एक्टिव है, आपको नेटवर्किंग करने का मौका मिलेगा. यू विल गेट टू नो पीपल हु आर नॉट इन योर फर्स्ट सर्कल. आपके दोस्त, आपके कजिन्स के अलावा और भी लोग हैं इस दुनिया में, उन सब के बारे में आप जान सकते हो. अगर आपको लिखने का इंटरेस्ट है, आप लिंक्डइन में पोस्ट कर सकते हो. स्लोली यू कैन गेट पीपल टू नोटिस यू, एंड इफ यू आर गुड इन एनीथिंग it will give you the visibility. आपको visibility मिल जाएगा. आज की तारीख में people don't need to have degrees to make money. TikTok में लोगों ने पैसा कमाया है, YouTube में लोगों ने पैसा कमाया है. आपको अगर डांसिंग का शौक है, YouTube में चैनल क्रिएट करो, इंस्टा में चैनल क्रिएट करो. If you are a genuinely good dancer, people will come to know about it in today's era. That's the fact. आपको visibility का प्रॉब्लम नहीं होगा. आपके अंदर टैलेंट है कि नहीं है वो आपको ढूंढना है. LinkedIn is a forum where you can get visibility. I would strongly urge you to join that. Some of the recommendations which I give for anybody who wants to start reading is this. This is my recommendation for anybody who wants to start reading. Other panelists may also give their own recommendation. I am almost done. I will not take more than 60 seconds. I'm sorry if I exceeded my time. 27. These are the books I would read. I would recommend reading. I have also read it multiple times. इसमें से जो पहला बुक है ना, ये मैं सबको अर्ज करता हूँ रीड करो. ये मेरा बर्थडे गिफ्ट है. कोई भी बच्चा मुझे मिलेगा 10th में, 11th में, 12th में, मैं उसको रिच डैड पुअर डैड दे देता हूँ. It has been a life-changing book for me, where I started thinking about money differently. People don't even think about money at that age. You should think about money at that age, and there's a lot of things you can do after that. So Rich Dad Poor Dad, History of Money is a very interesting book. अगर आपको बुक पसंद है, आजकल ऑनलाइन भी बुक्स मिल जाते हैं आपको. किंडल है, प्ले स्टोर है, बहुत सारा चीज है. वेबसाइट में 2 रिकमेंड करूंगा. एक है Zerodha Varsity. दिस इज फॉर एनीबडी हु वांट्स टू गो इनटू फाइनेंस. ये दोनों वेबसाइट फाइनेंस रिलेटेड है. स्टॉक मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट, रिसर्च, ये दोनों वेबसाइट काफी यूजफुल है. कैपिटल माइंड एंड Zerodha Varsity. न्यूज़पेपर्स रीड कीजिए. आई वुडंट रिकमेंड इकोनॉमिक टाइम्स एंड ऑल दैट. आई एम ओनली रिकमेंडिंग 2 न्यूज़पेपर जो स्टूडेंट लेवल पे आपको काम आ सकता है, जो आपको सिखाएगा बहुत कुछ. वो है मिंट, जो हिंदुस्तान टाइम्स का है, और दूसरा ET वेल्थ मैगजीन, जो वीकली हफ्ते में एक बार आता है. रीड करते जाइए, नॉलेज मिलता रहेगा. End of the day, jobs will only come to skillful people. I don't think it is any time about degrees. I think degrees are overrated. I've got 2, but I still think degrees are overrated. It was relevant when I was maybe 20, but now when I'm not, I don't think today degrees are challenging my career. Nobody's asking me about my degrees now. It's about what can you present me. आप क्या offer कर सकते हो as a skill. वो skills बहुत important है. Again, this is my belief that in the long run, आप जब career बनाओगे, only 2 things matter: knowledge and people skills. Everything else will side up निकल जाएगा. 2 ही चीज मैटर करेगा. आपके पास hardcore knowledge कितना है आपके फील्ड का,
and people skills क्या है आपका, how are you with people. These are the two things I think will matter the most, and I personally believe only these things matter, nothing else matters. ऐसा मुझे लगता है, this is my belief, and that's where I will stop. Thank you ma'am for this opportunity. I hope I did not take too much time. Sorry Maharshi, sorry Pranav to bore you guys. Oh, not at all, sir. Thank you so much. We expected the CA knowledge, but you again, explored and brought the whole world of commerce in front of us. Not only that, like पढ़ाई के आगे, academics के आगे, जो आज के दिन पे मतलब skills हैं, जैसे sir ने focus किया, तो I'm sure students have really gained from your talk. Thank you so much. Kindly stay with us, sir, because I don't know what students, the queries Yeah, we they can look have at in their Q&A. mind. Yeah, sure. Maharshi ji, with your kind permission, can we allow Pranav to speak? So the thing is that as you know that I did my mechanical engineering and did my MBA, but I think that I should just focus on some few things, और मैं ऐसे चीजें के बारे में बोलना चाहिए कि जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, कि ये डिग्री का मार्क्स एंड क्या आप करोगे, वो एक जो पैटर्न बनता जाता है, वो बनने के लिए क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, उसके लिए मैं अभी एक स्लाइड बनाया. जब हरीश जी बोल रहे थे, जो भी मेरे माइंड में आया वो मैंने एक स्लाइड 4 स्लाइड्स पे डाला है, क्योंकि मुझे इतना पता नहीं था कि ये किस तरह से आगे जाएगा डिस्कशन. तो आई विल जस्ट शेयर सम फ्यू स्लाइड्स विथ यू. यस. सो मुझे ऐसे लगता है कि कितने स्टूडेंट्स को ऐसे लगता है कि 99 स्टूडेंट्स मेरे साथ एक सर्टन चीज कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ, कुछ पता नहीं है, देयर इज नो पर्पस. ऐसे ना मुझे बहुत लगता था 11th 12th 10th 9th, मुझे बहुत लगता था. एंड सो मैंने एक जस्ट ऐसे लिखा है कि व्हाट टू सीक, क्या हमें हमेशा देखना चाहिए. तो हमेशा हम अपने हैप्पीनेस के लिए ट्राई करें, और हैप्पीनेस इज नॉट इंडल्जेंस. तो देयर इज अ इंडल्जेंस, मतलब जो अपन मजाक करते हैं, मजाक इज नॉट हैप्पीनेस. तो मुझे ऐसे लगता है ना कि हमारे हिंदू शास्त्रास में लिखा है कि यू डू व्हाट इज राइट, नॉट व्हाट इज प्लीजिंग. तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन श्रेयस एंड प्रेयस. तो मेरे स्टूडेंट्स ना, मेरे जो भी फ्रेंड्स है या मेरी जो भी अभी सुन रहे हैं, वो हमेशा ये याद रखे कि अपने को वही करना है जो बराबर है, नॉट कि जो मुझे अभी मजा आ रहा है, ये करने में मुझे मजा आ रहा है. तो ना मजा आ रहा है इज समथिंग विच यू शुड अवॉइड इफ इट इज नॉट इन योर गोल. तो गोल क्या है? गोल है हैप्पीनेस बनना. हैप्पी बनने के लिए क्या नेसेसरी है? तो मुझे कुछ थिंग्स आए कि अगर आपने एक डिसाइड किया कि मेरी ये ड्यूटी है करना, अगर आप स्टूडेंट्स हो, मुझे कॉमर्स करना है, ये करना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपके सामने आपने जो डिसाइड किया है ना, ऐसे नहीं है ना कि पिताजी मम्मी ने आपको सर पकड़ के डाला कि तू भैया तू कॉमर्स ही कर ले, तू साइंस ही कर ले, तू आपने डिसाइड किया ना. तो अगर आपने डिसाइड किया है तो फोकस ऑन ड्यूटी. तो आप ऐसे समझ लिए कि ये मेरा ड्यूटी है, ये करना है. एंड ऐसे टाइम पे ना ऐसे हमेशा होएगा कि 4 सब्जेक्ट्स आपको अच्छे लगेंगे एंड 2-3 सब्जेक्ट्स आपको अच्छे नहीं लगेंगे. तो आप हमेशा रिमाइंड करना कि जो 2-3 सब्जेक्ट्स अच्छे नहीं लगे ना, वो आपकी ड्यूटी है करना. बिकॉज अगर वो 2-3 सब्जेक्ट में आप फेल हो गए, तो कुछ फायदा नहीं है कि बाकी सब्जेक्ट्स में 99 मिले, क्या मिले. तो इट्स योर ड्यूटी. तो अपन हिंदू फिलोसॉफी में जैसे कृष्णा बोलता है कि कर्मा इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वे ऑफ डिवोशन टू गॉड. तो आप एक तय कर लीजिए कि आपको अगर करना है कॉमर्स, तो करना ही है. मतलब देयर इज नो एंड इट इज. तो आप ये करते समय ऐसे नहीं सोचना कि मुझे इतने मार्क्स मिलेंगे, नहीं मिलेंगे. अगर वो आप सोचोगे ना, तो आप में एक फियर आ जाएगा कि अरे मेरे मार्क्स नहीं मिले तो क्या होगा. डोंट थिंक ऑल अबाउट दैट. जस्ट डू वॉट एवर इज इन फ्रंट ऑफ यू इन द बेस्ट वे पॉसिबल टू योर एबिलिटीज एंड योर लिमिट्स. जो आपके लिमिट्स है, मुझे पता है कि कुछ लोगों का इकोनॉमिकली थोड़ा कम होगा, या कुछ लोगों के माँ पिता बहुत शिक्षित होंगे पहले से, जिनके वजह से उनको हेल्प है, उनको एक कल्चर है, दूसरे लोगों को नहीं है. बट इट डजंट मैटर. व्हाट इज योर ड्यूटी कि आपके जो सर्कमस्टेंसेस दिए हुए हैं उसमें आप बेस्ट करिए. तो दैट इज फर्स्ट कि फोकस ऑन ड्यूटी विल गिव यू अ हैप्पीनेस. एक 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 लार्जर गोल होना चाहिए आपके लाइफ में, कि कोई भी है, आपके रिलेटिव्स है, मॉम या डैड है, जो आपके ऑब्वियसली भगवान से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो उनको क्या आपका बिहेवियर उनको
प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, क्या आप पे डिपेंड है कोई आपका छोटा भाई, उसके प्रति आपकी ड्यूटी, फिर आपने अगर एक एजुकेशन कोर्स लिया है उसके प्रति आपकी ड्यूटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन होल ऑफ योर लाइफ, अदर देन एवरीथिंग एल्स इज सेकेंडरी। तो ड्यूटी क्या आप कर सकते हो अच्छा, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। दूसरा क्या है कि एक अगर आप देखो कि दूसरा हैप्पीनेस क्या है, तो दूसरा हैप्पीनेस आता है कि अगर आप इंप्रूव हो रहे हैं आपके खुद के वर्जन पे, आप खुद एक खुद का वर्जन है एंड आपके मन में बहुत कुछ कंफ्यूजन होगा, बट क्या आज मैंने कुछ अच्छा किया, आज क्या मैंने एक लार्जर डायरेक्शन में इंप्रूवमेंट मेरी चालू है, दैट इज सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बीइंग हैप्पी। थर्ड इज आर यू बिल्डिंग ग्रेट रिलेशनशिप्स। तो ग्रेट रिलेशनशिप्स सब लोग ऐसे हो गए कि मेनी टाइम्स इट कम्स फ्रॉम अ कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू कि जिसके साथ मैंने जॉब करना है उसके साथ ही मैं अच्छा रिलेशनशिप करूंगा, जिससे मुझे फायदा है उसके साथ ही मैं अच्छा रिलेशनशिप करूंगा, बट दैट इज somehow you are never very honest with those relationships and that comes out। आपको ऐसे लगता होगा कि मैं जिससे मुझे फायदा है उसके साथ ही अच्छा रिलेशनशिप रखूंगा, तो उसको भी वो पता चलता है। आपको ऐसे लगता है कि उसको पता नहीं है, बट उसको वो हमेशा पता रहता है। तो यू ऑलवेज हैव वेरी गुड रिलेशनशिप्स एंड गुड रिलेशनशिप्स actually make you happy। great relationships with friends, with मेनन सर जैसे, अगर आपके पास गुरु हो जो अगर कुछ आप मिस्टेक करे तो एक थप्पड़ मारने के लिए भी कमी नहीं करेंगे। ग्रेट रिलेटिव्स जो आप सीखते हैं आपके रिलेटिव से, आपके ऑब्वियसली आपके एम्प्लॉयर्स और आपके माता पिता। और एक चीज है जो पॉइंट मुझे आया कि आप कैसे हैप्पी हो सकते हो कि if you are very useful to somebody, if you are useful to even a dog, you will be very happy। if you are useful to your mom, you will be very happy। you don't be lazy in being useful to somebody, and that attitude will carry with you even with at your workplace, and be grateful to whatever you have, whatever you think कि कितना भी अपने को disadvantage है। आई एम वेरी श्योर कि 50% ऑफ भारत के 50% बच्चों से आप बहुत ज्यादा प्रिविलेज होंगे। आप मेनन क्लास में तो आ रहे हैं, बहुत सारे लोग होंगे कि जो क्लास भी नहीं जा सकते होंगे, तो आप बहुत सॉरी फॉर माय नॉट बीइंग नॉन फ्लुएंट, क्योंकि इंग्लिश बोलने की बहुत आदत हो गई। तो आप ऐसे बहुत सारे लोग होंगे कि जो मेनन क्लास का फी भी नहीं अफोर्ड कर पाएंगे। तो स्टॉप बीइंग अ विक्टिम ऑफ योर ओन मेंटल बायस कि आपको लगता है कि आपकी फैमिली में प्रॉब्लम है, जो भी मेरा इकोनॉमिक, स्टॉप डूइंग दैट एंड बी ग्रेटफुल एवरी मोमेंट कि मुझे लाइफ मिली, ना मुझे कैंसर है, ना मुझे हार्ट का कुछ प्रॉब्लम है, देयर इज नथिंग। सो व्हाई नॉट एट एवरी मोमेंट बी हैप्पी ऑफ व्हाट यू हैव गॉट, जो भी आपको मिला है। तो दूसरा चीज ना, एज अ स्टूडेंट लाइफ, नाउ वी कम टू स्टूडेंट लाइफ, कि क्या नहीं डरना है। तो आपने कितने लोगों ने 3 इडियट्स देखा और उसके बाद में सोचा, 3 इडियट्स तो देखा है क्या ये जनरेशन ने, मुझे पता नहीं। तो कितने लोगों ने देखा कि there are 3 things that Amir Khan says, out of which one is very important in student life and general life। You should not fear। fear जिस तरह fear आती है ना, fear makes you lazy because fear makes you think कि मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा। कुछ नहीं होगा भाई, कुछ नहीं होगा। आप अच्छा करो, सबका अच्छा होगा। कुछ नहीं, और नहीं होगा तो भी देयर आर वेज टू फेस इट। देन फियर क्या है कि एक फ्यूचर में ऐसा होगा तो मेरा क्या होगा, नहीं फियर रखना है, क्योंकि फियर अफेक्ट्स योर स्टडीज, डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी वेरी वेरी इन अ वेरी बैड वे, वेरी पुअर वे। तो जैसे ही आपके पास फियर आए ना, तो यू स्टॉप एंड रियलाइज कि क्यों फियर कर रहा हूं मैं, एंड यू सी पीपल बिलो यू इन दैट सिचुएशन कि मेरे को ये फियर लग रहा है, तो मेरे से कम मार्क मिलने वाला भी होगा, उसका तो और टफ सिचुएशन है, तो वो बैठा है क्या ऐसे हाथ पे हाथ रख के कि अरे मैं क्या करूं। तो फियर बिल्कुल नहीं रखना है। जो भी स्टडी आप करें, बी फियरलेस। आई एम नॉट सेइंग बी मैड कि मैं आईआईटी में जाऊंगा, दैट इज मैडनेस। और मैं जो भी है विदाउट स्टडिंग आई विल गो एंड पास द एग्जाम विद फ्लाइंग कलर्स, दैट इज मैडनेस। बट डोंट फियर कि मैंने अगर अच्छा स्टडी किया है तो क्या होगा। सो दैट यू शुड नॉट डू। सो एक चीज दूसरी है कि आपके जो लिमिट्स है ना, आई रिमेम्बर कि मेरे स्टूडेंट लाइफ में जब मैं 8-9 में था मेनन में, तभी मुझे ऐसे बहुत लिमिट्स लगता था कि देर आर like half of Menon class was English medium who had studied English medium from first standard, and मैं तो 7th 8th 9th में इंग्लिश में साइंस एंड मैथ्स पढ़ा। तो मुझे हमेशा ऐसे फियर होता था कि मेरा ये लिमिट है,
एंड शायद से दिस गाइज हैव एन एडवांटेज, बट अल्टीमेटली एक टाइम पे लकीली मुझे ऐसे रियलाइज हुआ कि ये फियर इज द थिंग दैट इज एक्चुअली बॉगिंग मी डाउन. If you stop fearing, you will invest that time and that resources and that mental energy into productive things. So don't fear. किसी ने भी और अभी क्या हुआ है आजकल की मीडिया ना बहुत बड़ा चढ़ा के बोलता है कि इसका पैकेज उतना, उसका पैकेज उतना, इसने इतने मार्क्स लेके ओ उधर गया, वो आप सब देखते रहोगे एंड सबकॉन्शियसली आप में एक फियर आ जाएगा कि यार सक्सेसफुल होने के लिए ये जरूरी है, वो जरूरी है. कुछ जरूरी नहीं है अदर देन यूर डिवोशन टू योर वर्क. जो भी आपने किया है, आपने डिसाइड किया है कि आपने ये करना है, वो पूरे, अभी कृष्णा बोलता है कि तो फॉर अपने हिंदू फिलोसॉफी में कृष्णा बोलता है कि योग कर्मसु कौशलम, मतलब आपके काम में स्किल सेट, स्किल्स बहुत बढ़ाना इज अ टाइप ऑफ योगा. योगा इज बेसिकली बीइंग, Yeah, just that we were losing. Now we are able to hear you. यस, ओके. सो मेरा दूसरा चीज ऐसे है कि स्टूडेंट लाइफ में कभी फियर मत करना. कभी भी आपके जो फिजिकल या मॉनेटरी आप ऐसे दिखते हो वैसे दिखते हो, ये टाइम पे बहुत होता है कि यू नो वो अच्छा दिखता है, वो इसकी गर्लफ्रेंड है, वो इसका बॉयफ्रेंड है, मेरा क्या होगा. तो ना ये ना कभी फियर मत रखना, कुछ फर्क नहीं पड़ता है. ओके, आपने हार्दिक पांड्या की वाइफ देखी होगी ना, तो उसका कुछ मतलब नहीं है, ही जस्ट फोकस्ड ऑन क्रिकेट. या आप देखो कि लता मंगेशकर देखो यार, कितने लोग हैं कि जिनकी एक एरिया में लिमिट है बट दूसरे एरिया में उन्होंने एफर्ट मार मार के बहुत अच्छा किया है. तो don't let your limits bog you down. You should never be ashamed of your limits. And your human, अपना ह्यूमन टेंडेंसी होता है कि जो अपना लिमिट है ना वो अपने को पता होता है माइंड में, एंड अपना माइंड वो एनलार्ज करते रहता है, तो वो कभी मत करना. सो दैट इज सेकंड. और आपने ये किया ना, तो आप ये किया तो मुझे वो मिलेगा, वो किया तो मुझे ये मिलेगा, ये एक्सपेक्टेड आउटकम्स है ना, वो भी आपको बॉक डाउन ना करने दे. तो फॉर एग्जांपल जब भी मैं बी स्कूल का प्रिपरेशन करता था तो सबको लगता था कि जेबीएमएस में मिलेगा तो मेरे को ये पैकेज मिलेगा, आईआईएमए में मिलेगा तो मेरे को ये पैकेज मिलेगा. ये ना सब माइंड से हटा देना. या सीए में होऊंगा तो मुझे ऐसा होगा, ये सब माइंड से हटा देना. एक क्लियर माइंड से स्टडी करना जो भी करोगे. ऑल्सो डोंट पे अटेंशन टू व्हाट पीपल से, पीपल इंक्लूडिंग यूर रिलेटिव्स, बिकॉज उनको क्या है कि बहुत सारे रिलेटिव्स को ऐसी इच्छा होती है कि जो मैं न बन पाया वो मेरा बेटा बन पाएगा. यू नो, इट्स लाइक क्या बोलूं मैं, कि जो मैं नहीं बन पाया, मैं उन्हें पता है कि उन्होंने ये मिस्टेक किया जो मेरा बेटा ना कर पाए. ऐसे बहुत सारे रिलेटिव्स को लगता है, इंक्लूडिंग आवर मॉम एंड डैड. तो लिसन टू देम, टेक वॉट एवर इज नेसेसरी, बट डोंट गेट बॉक्ड डाउन. ओके, तो दैट इज थर्ड थिंग. What people will say is none of your business. Your business is to do your job in the best way, and then nobody can stop you in actually. So what to, तीसरा स्लाइड ऐसा है कि what to leverage. Can you see my third slide? So एक तो पॉइंट मैंने हरीश जैसे चुराया, तो you should be a good thief in good things, you know. So degrees to skill is very important. Whatever degree you have has become only an entry point in all the fields. And after that entry point, it is very necessary कि आपके soft aspects क्या है. Soft aspects. Do you have laziness? Do you have grit? Are you true to your word? If you say कि I will deliver certain work in certain things, including promises to yourself. You know, many people would have some things which they promise, but they never even keep up to their own promises. So degrees to skill is very important. Skill आप एक add set करना. दूसरा है कि टेक्नोलॉजी जो है ना, टेक्नोलॉजी इज एग्जैक्टली लाइक मनी. सो इफ यू, सो सपोज यू नो पीपल आर बिहाइंड इन सर्टन, अभी क्या हो गया, सोसाइटी इज वेरी मनी फोकस्ड. तो जब भी पैसे पे फोकस होता है ना सोसाइटी का, तो ये सब चीजें आती है कि उसका नेटवर्क कितना है, उसका नेटवर्क कितना है. बट अभी मैं आज आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि अगर आज मैंने आपको 100 करोड़ दिया तो आप क्या करोगे. तो यू नो व्हाट यू विल डू, यू विल एम्पलीफाई वॉट एवर पर्सनैलिटी यू हैव. आपकी जो भी पर्सनैलिटी है ना वो एम्पलीफाई करता है पैसा. वैसे ही टेक्नोलॉजी ऑल्सो जो भी आपकी पर्सनैलिटी है वो एम्पलीफाई करती है हमेशा. अगर आप लेजी हो ना तो टेक्नोलॉजी का कुछ फायदा नहीं है. टेक्नोलॉजी विल मेक यू मोर लेजी. तो टेक्नोलॉजी यूज करना, लिवरेज करना, बट नॉट फॉर योर बैड क्वालिटीज बट फॉर योर गुड क्वालिटीज. तो आपको ये हमेशा देखना है कि टेक्नोलॉजी में मेरा लेजीनेस एम्पलीफाई नहीं हो रहा है बट मेरा स्किल एम्पलीफाई हो रहा है. तो ये ध्यान में रखना टेक्नोलॉजी, बिकॉज बहुत लोग यूट्यूब पे जाते हैं लेक्चर देखने के लिए और फिर सॉन्ग्स देखते बैठते, एंड दे आर नॉट इवन इंटरेस्टेड इन सिंगिंग. सो ऑलवेज लिवरेज योर रिलेशनशिप्स एंड पीपल.
people are more open to your suggestions and helping you than you think. आपको हमेशा डर लगता है कि यार ये इंडस्ट्री में ये काम कर रहा है, मैं इसको जाके क्या करूं, ये मेरा रिलेटिव है, मैं इसके साथ बहुत 20 साल मैंने उसको देखा भी नहीं, उसका मैंने मजाक उड़ाया था एक फंक्शन में, उसके बेटे और मेरे झगड़े होते हैं, बट अभी मैं इसको मेरे जॉब जो चाहिए उसमें ये काम कर रहा है, तो मैं उसको जाके बोलूं क्या? ये कभी भी मत रखना। लोग बहुत ओपन होते हैं, आपको एक अपॉर्चुनिटी देने को, आपको एक प्लेटफॉर्म देने को लोग बहुत हेल्पफुल होते हैं। तो ऑलवेज लिवरेज पीपल, एंड एज हरीश भाई said that you also should try different things, different internships करिए, देखिए कि क्या अच्छा लगता है, हेल्थ पे बहुत फोकस करिए। अब ये मेनन सर मुझे डांटेंगे कि यार ये 12वीं का उनका एग्जाम है, आप हेल्थ का क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि आपको जो हेल्थ अभी इजी लग रहा है ना, वो 20-25 साल में आप यू विल पे थ्रू योर टूथ टू स्टे फिट। आई एम टेलिंग यू, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं कि जो आप निग्लेक्ट कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, हैव यू हर्ड, आई एम जस्ट गिविंग यू, मैं ऐसे ही एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। आपने कभी सुना है कि आईज का कैंसर हुआ किसी को? आपको ऐसे लगता है कि जिस तरह से अपन स्क्रीन टाइम दे रहे हैं, यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक, इससे 20 साल में नहीं हो सकता रेटिना का कैंसर? हो सकता है, राइट? तो आप थोड़ा आगे भी देखिए। आपको ऐसे लगता है कि अपने हैबिट सब अच्छे नहीं है, आपके फोकस हैबिट पे करिए, और हेल्थ इज अ हैबिट। अगर आप हेल्दी हैबिट्स है तो आप हेल्दी रहेंगे, नहीं है तो नहीं रहेंगे। तो आपका खाना पीना, इस पे थोड़ा फोकस करिए। ऑल्सो मैं क्या बोलता हूँ ना कि आपको क्या लिवरेज करना है। मैंने जब भी फोकस किया था कि कौन सा करियर चुनना है, तो वन थिंग विच हरीश सेड इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि एलिमिनेशन। मुझे 3-4 चीजें ऐसे पता थी कि मैं इसके लिए फिट नहीं हूं, तो एलिमिनेशन इज वन थिंग। एंड सेकेंड थिंग इज दैट कि आप उस प्रोफाइल में किसी चीज से क्या आप प्यार कर सकते हो। कि सपोज कोई फिल्म इंडस्ट्री में जाना चाहता है, तो कैमरा है, कैमरामैन हो सकता है, म्यूजिक हो सकता है, पोस्ट स्क्रीन प्ले एडिट हो सकता है, या आप अगर फाइनेंशियल्स में जाओ तो इन्वेस्टमेंट हो सकता है, ऑडिट हो सकता है। क्या आपको उस पोजीशन में विजुअलाइज कर सकते हो? अगर नहीं कर सकते हो तो आपको क्या उस फील्ड में कोई पर्सन पता है कि जो सीए इंटर्नशिप कर रहा है, उसके साथ क्या आप टाइम स्पेंड करके देख सकते हो कि मेरे लिए ये फिट है या नहीं? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कैन यू विजुअलाइज yourself in that profile? And that is the most important thing while taking in decision, कि आपको उस certain profile के around something you should be madly in love with. So for example, you are madly in love with investment, you are madly in love with say auto industry. तो मेरा एक कजिन है कि जो अभी मर्सिडीज बेंज में काम कर रहा है। he just loved cars, but his work doesn't involve anything directly to engine of car, but he still is very happy in Mercedes Benz. या अशोक लेलैंड में एक मेरा फ्रेंड है कि he is always passionate about cars. तो आप ऐसे देखिए कि क्या मुझे ये प्रोफाइल में कुछ तो अच्छा लगना चाहिए ये प्रोफाइल में। एंड वंस यू कैच कि मुझे ये अच्छा लगता है, तो आप वो अच्छे पे फोकस करना, क्योंकि हर प्रोफाइल में आपका कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगा। आपको लगेगा कि IIM ऐसे पास होंगे तो बहुत अच्छे प्रोफाइल मिलते हैं, ऐसा नहीं है। जो भी पास होते हैं उनको 20% जो अच्छा ही है ना वो प्रोफाइल में, वो पकड़ के रहते हैं हमेशा। और जो 80% उसके आजू बाजू में है, रूटीन है, बोरिंग है, डिफिकल्ट है, अनप्लेजेंट है, निग्लेक्ट भी नहीं कर सकते, इतना गंदा है वो चीज, वो आपको निग्लेक्ट करके जो आप अच्छा ही है उस प्रोफाइल में, उस पे फोकस करना, पेशेंस रखना। हर एक प्रोफाइल पेशेंस रखना। आप जो भी आप अगर आप मेरी प्रोफाइल देखे होगी तो मेरी प्रोफाइल में एक बड़ा मिस्टेक है कि मैंने जॉब्स चेंज किए हैं, बिकॉज मैं इमेच्योर था, मुझे किसी ने बताया नहीं कि जॉब्स बहुत ज्यादा चेंज मत करना। अभी का जॉब है स्टेबल 4-5 साल, बट मैंने स्टार्टिंग के करियर में बहुत ये मिस्टेक किया। तो आप पेशेंस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ। आप जो भी जॉब पकड़ो, एक शॉर्ट टर्म प्रॉफिट का कभी भी माइंड में मत रखना। शॉर्ट टर्म में कि मैं कुछ नहीं करूंगा बट मुझे सैलरी राइज चाहिए, मैं कुछ नहीं करूंगा बट मुझे हाइक मिलना चाहिए, मैं कुछ नहीं करूंगा बट मुझे प्रमोशन मिलना चाहिए, ये एटीट्यूड बहुत कम करना। सिमिलरली मैंने कुछ नहीं किया बट मुझे मार्क्स मिलने चाहिए, दैट इज ऑल्सो ज्यादा रिलेवेंट है अभी। तो ये एक आप हमेशा रखना कि आप पहले एक वैल्यू दे दो, आप पहले आपका एफर्ट दे दो, ऑनेस्ट रहो, पेशेंट रहो, एंड फिर आप एक्सपेक्ट करना कि कुछ मुझे मिलेगा। एंड अगर नहीं मिला तो भी आप मत ये रखना कि नहीं मिला,
क्योंकि आपका गोल लाइफ में सेल्फ इंप्रूवमेंट है। जैसे हमने फर्स्ट स्लाइड पे देखा कि हैप्पीनेस कम्स थ्रू सेल्फ इंप्रूवमेंट, नथिंग एल्स। हैप्पीनेस कम्स थ्रू ओइंग टू योर ड्यूटी, बीइंग देयर। आपके कितने रिलेटिव्स ऐसे बोल सकते हैं कि आई कैन डिपेंड ऑन यू नो XYZ, अगर इसने बोला कि मैं ये करूंगा तो मैं ये करूंगा। ऐसे कितने आपके रिलेटिव्स आपके बारे में बोल सकते हैं, आपके कितने रिलेटिव्स आपके बारे में बोल सकते हैं कि यू ऑलवेज टॉक ट्रूथ इवन इफ इट इज अनप्लेजेंट। So that soft qualities are way more important than what degree you will attain in this next 12 months, probably next 6 months. That is no doubt important because that is the promise that you have made to yourself कि मैं कॉमर्स जाऊंगा। हमने नहीं बोला था ना कि जाओ, तो ये आप खुद से बोलना, थोड़ा सा टाइम 5-10 मिनट्स खुद निकालना और जाना घूमने और ये सोचना कि क्या करना है। एक छोटा डायरी रखना। मोबाइल पे डायरो ऐप है, आई एम श्योर कि आपके सबके पास ये जनरेशन में मोबाइल होगा, तो डायरो करके ऐप है, उसमें जस्ट डायरो में डायरी है, इट्स ऑनलाइन डायरी, उसमें लिखना। कोई नहीं देख सकेगा। आधे लोग इसलिए डायरी नहीं लिखते कि कोई देखेगा मेरी डायरी तो आई विल बी एक्सपोज। दैट्स फाइन, यू डू अ डिजिटल डायरी। ओके, दूसरा है कि क्या हम बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए इस सॉफ्टवेयर एस्पेक्ट्स ऑफ योर ओन बिहेवियर। ये कभी भी आप नहीं भूलना कि आपको हमेशा एथिकल रहना है, कभी भी नहीं कॉपी करना है। 5 मार्क से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। You will go in depression if you are caught. There are many cases where it's good as it seems while going, and then it goes downhill. तो आप कभी भी नॉन एथिकल चीज नहीं करना। और किसी भी एस्पेक्ट में, रिलेशनशिप में, आपके एम्प्लॉयर के साथ, आपके एग्जाम में, आपके गुरु के साथ, जिसके भी पास आपकी कुछ ड्यूटी है, उसमें कभी भी कुछ भी अनएथिकल मत करना। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, और यू अदरवाइज यू विल नॉट बी हैप्पी। तो जो एक मोराडियन सर का आई थिंक एक लेक्चर हुआ था आपके मेनन सीरीज में, तो मेनन उनका मुझे और एक याद है। तो ही वाज माय टीचर आल्सो, मेनन सर। तो उन्होंने हमें लास्ट दिन ऑफ ग्रेजुएशन में एक कविता पढ़ाई थी कि मैन इन द मिरर। तो मुझे वो पूरी कविता याद नहीं, बट उसका सही मायने में अर्थ ये था कि मैन इन द मिरर इज मैन इन द मिरर हैप्पी about your behavior? Man in the mirror is yourself. When you are alone with yourself, you can't lie. If you have cheated someone, you can't be happy. You can't be happy in a good way. You can be happy कि कैसा इसको मैंने फंसाया, but ultimately you will be unhappy because you will not be able to match the happiness of a person who has got 5 marks less than you but is very confident because he is done it on his own merit. तो आप पूरा ट्राई करना कि मेरिट से जो भी मिला, I am happy with it. Don't do anything unethical. एंड यू विल बी शॉक्ड। ये मेरा ऑब्जर्वेशन है, अभी मैं 12 साल 13 साल ही एक्सपीरियंस है। इंटेलिजेंस, स्ट्रीट स्मार्टनेस आर द क्वालिटीज विच आर वेरी टेम्पररी, विच विल एस्टेब्लिश आपका रिलेशनशिप। बहुत टेम्पररी टाइम पे इंटेलिजेंस पे होगा, बहुत टेम्पररी टाइम पे आपका रिलेशनशिप। आप ही आपके फ्रेंड्स ही देखिए कि कौन से फ्रेंड्स आपके बहुत अच्छे हैं, कि जो आपके साथ एथिकल है, जो आपके साथ ट्रू है, दोज हु केयर अबाउट यू। ओके, तो यू हैव टू बी एथिकल। जस्ट ग्रीटी मतलब क्या कि आपने अगर तय किया है ना करना है तो करने का, पूरा एफर्ट मारने का, नहीं छोड़ने का बीच में। अगर आपने तय किया है कि मैं ये करूंगा, सीए करूंगा, हैव यू मेट 50 लोग, 50 नहीं 10 लोग, 10 सीए से मिले जो अभी काम कर रहे हैं 10 साल इस प्रोफाइल में? क्या उनके ऑफिस में जाके बैठे हो आपकी क्या हो रहा है? तो पूरे ग्रिट लगाना, पूरा एफर्ट लगाना, बिकॉज दैट इज द सोर्स ऑफ हैप्पीनेस। आपको ऐसे लगता है कि दैट इज द सोर्स ऑफ स्ट्रेस, बट इट इज एक्चुअली अ सोर्स ऑफ हैप्पीनेस। मैं बोल रहा हूँ आपको, ये तभी तक स्ट्रेस लगता है ना जब तक आप पहला स्टेप नहीं लेते हो। तो दैट इज सेकंड थिंग। एंड दिस इज माय एक्सपीरियंस कि डिग्रीज एंड एवरीथिंग इज अ एंट्री पॉइंट इनटू अ करियर, बट लार्जली आपके जो बिहेवियरल ट्रेट्स है, जो आपका सबकॉन्शियस बिहेवियर है, क्योंकि आप ना हर स्टेप में कॉन्शियसली डिसीजन बहुत कम लेते हो, एंड योर सबकॉन्शियस माइंड कीप्स ऑन टेकिंग डिसीजंस फॉर यू। तो आप वो सबकॉन्शियस माइंड को हैबिट में कैसे, हैबिट, अच्छा हैबिट हमको जमा करना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और अदरवाइज आपका बिहेवियरल ट्रेट्स आर गोइंग टू पुल यू डाउन, नॉट योर इंटेलिजेंस, नॉट योर स्ट्रीट स्मार्टनेस, बट आपके बिहेवियरल ट्रेट्स आपको नीचे ले आएंगे, बिहेवियरल ट्रेट्स और ऊपर लेके जाएंगे। लेट्स टॉक इन अ पॉजिटिव वे। और आपके बिहेवियरल ट्रेट्स आपको ऊपर लेके जाएंगे, जैसे आपकी ग्रिट है, जैसे आपका ट्रूथफुलनेस है, जैसे आपका एडवेंचर है, करेज, एडवेंचर नहीं करेज, बिकॉज एडवेंचर में थोड़ा ऐसा आता है कि उसमें मेरे को पता नहीं कि मैं सक्सेसफुल होऊंगा कि नहीं, बट करेज, प्रिपेयर्डनेस, प्रिपरेशन, दैट इज व्हाट इज गोइंग टू
take you to the next step. Things to avoid is addiction of any kind, because I have seen this and people have different addictions. I have seen this कि अभी के जो जनरेशन के लोग हैं उनको स्मोकिंग का एडिक्शन है, उनको स्क्रीन का एडिक्शन है. हमारे जनरेशन में भी हो सकता था एडिक्शन, बट लकीली स्क्रीन नहीं था. तो आई डोंट नो कि मैं आपका जैसा बच्चा होता तो मैं कैसे बिहेव करता, मेरे को नहीं पता. बट आप ट्राई करना एडिक्शन रिमूव करने का. फ्रॉम एडिक्शन का डेफिनेशन ऐसे है कि कंपल्सिव बिहेवियर विच इज नॉट बेनिफिशियल टू यू, दैट इज द एडिक्शन. If it is beneficial to you, you do. If exercise is your addiction, you do. If singing is your addiction and you are looking at YouTube videos to improve your singing, you do. Because that is your goal, that is what you have decided, that is your duty to excel yourself. तो वो एडिक्शन नहीं है, वो अच्छा है. बट जो भी आपको ड्यूटी से आपके दूर कर रहा है वो एडिक्शन आप मत लगने देना, चाहे वो स्मोकिंग हो, चाहे वो स्क्रीन हो, जो भी हो. तो ये हो गया एक जनरल बिहेवियर. क्योंकि मैंने ऐसे देखा है कि मुझे ऐसे फील होता था हमेशा कि जो एक बिहेवियर पे फोकस देना चाहिए वो कम होता जा रहा है एजुकेशन में, एंड मार्क्स पे फोकस ज्यादा है. वो होना चाहिए मार्क्स में, बट मार्क्स इज आल्सो अ पार्ट ऑफ योर होल लाइफ. अभी मैं आता हूँ कि करियर के पास. देखो क्या है ना कि जब भी हम लोग MBA किए या जब भी हम लोग इंजीनियरिंग किए, द वर्ल्ड वाज वेरी डिफरेंट. वर्ल्ड वाज वेरी ब्रैकेटेड. एक वॉल होता था कि MBA आया तो उसी कंपनी में जाना पड़ेगा. नाउ वर्ल्ड हैज बिकम वेरी वेरी ओपन to intelligence, open to your innovation, open to whatever you bring to the table. मैं सिर्फ इतना बोलूंगा आपको कि आप MBA करना है तो जरूर देखिए, इट्स अ वेरी गुड स्ट्रीम. आपको अगर CFA करना है तो जरूर देखिए, बट इट हैज टू फिट योर लार्जर गोल एंड लार्जर हैप्पीनेस. डोंट स्ट्रेस योरसेल्फ कि मुझे MBA ही करना है, मैं JBMS में नहीं मिला तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अभी MBA के कुछ एडवांटेजेस ऐसे है कि there are disadvantages also. कि you become a generalist. आपको जनरली पता होता है कि बिजनेसेस कैसे वर्क होते हैं. जनरली आपको पता है कि क्या क्या क्रिटिकल थिंग्स है इन अ बिजनेस. बट इन इंडियन MBAs there is very less focus to behavioral traits or behavioral traits of leadership. तो आपको behavioral आपको ऑन ग्राउंड खुद ही सीखना पड़ेगा. वो आप कभी MBA में नहीं सीख पाओगे. आपको एक फोकस मिलेगा कि वेरियस स्ट्रीम्स ऑफ बिजनेसेस में क्या क्या क्रिटिकल थिंग्स है. तो MBA ये है. Investment industry is good industry where I work, but I think it's largely irrelevant at now because now you will be much more focused on wealth and your career choice. So career choice के लिए कुछ questions है तो I'm more than happy to take. Thank you so much, Pranav. For the Q&A round, we will wait because we have kept Maharshi sir also waiting for long. So if I may please request you that Yes. Q&A we will take towards Yes. the end. Thank you so much, Pranav. And without taking much time, over to you, Maharshi sir. Thank you so much for your patience, Maharshi sir. Over to you. Am I audible, ma'am? Yes, you are completely. Thank you for the opportunity, Reshma ma'am. I really appreciate whatever basic contribution I can do to building the country's youth. It was really nice hearing Pranav sir and Hari sir, getting two different perspectives. Again, a disclaimer, what Hari sir gave, that what I may say may not be again academic, even though I may have good number of degrees. What Pranav sir said also was different from what Hari sir said. So our end aim is that we help our students in understanding what they can do. So I'll quickly, more or less what I wanted to say has been covered by Pranav sir and Hari sir. So I'll try not to repeat myself and see whether I can cover most of the things. So in commerce, normally when students take, I'll give you my example. I was in an ICSE school. For students, my age is currently just 28. So I was maybe about 10 years back. I have completed my graduation. So I am not that old that I may not be relevant in current times. But yes, there has been a bit of a difference. So 9th, 10th in ICSE, we had an option to choose the additional subject. So in my family, there was an engineer who was my sister. So मेरे को बोला था, अरे देखो engineering ही करना है, you're very good at that. मेरे को कुछ नहीं आता था, but फिर भी मेरे को बोला था चलो engineering करना है. So in that thing मैंने बोला चलो I'll try. So technical drawing was the subject, and believe me, I had passed only because of my supervisor's help. उसमें 100 marks का internal होता था, 100 mark का exam होता था. So in the internal I had scored 100.
and in the external I don't know how much did I score, but my total score in the technical drawing was 78, and if you divide that with the 100 wala part, it approximately it comes around to 156, which means I may have scored around 56 in my external part. So that shows where I was as an engineer. So I thank my school for that, because had that not been the case, I would have not taken commerce. So again, मैंने decide किया technical drawing मेरे काम का नहीं है, so I then stepped into commerce. Commerce में I was told by one of my family कि नहीं CA तो सब लोग करते, you try and do CS. तो मैंने बोला ठीक है चलो CS कर लिया. I was so sure about CS कि मैंने 11th में SP ले लिया था instead of maths. So I had taken SP and IT instead of maths and IT. So I topped the college, but मैं सिर्फ एक ही सब्जेक्ट में टॉप नहीं कर पाया, वो था SP, because maths will anyways get better score than SP. So मेरे को ये तो था मैं CS कर रहा हूँ, लेकिन मेरे को बोला मेरे को हर एक सब्जेक्ट में टॉप करना है. So I forced my principal to give me shift me from SP to maths. हमारे कॉलेज में SP to maths नहीं देते थे, maths to SP देते हैं, SP to maths नहीं देते थे. But because I was good in academics, so मैंने कुछ भी करके force करके maths लिया. And believe me, maths actually helped in analytical understanding, and I scored the highest in maths in the whole college in the 12th standard. So this was my scenario. So I did my CS first and then did the other academic part, the CA and the LLB wala thing. So for the options around for students, major I'll try and cover the options. One is CA. So who should take CA? One is you should be good in accounts and maths basically, and in addition to that, costing and tax will also be there. CMA, there will be 5 or 10% of law and audit ka subjective part. So if you're not good in subjective, most of the CA students have this problem. 4 या 5 पेपर निकल जाते हैं, audit और law का पेपर में problem आता है. So if you think that you can manage the accounts, taxation and everything part, just audit and law is the challenge. So you can give it a shot to give CA. Second is CS. There are many students who are not that good in accounts and maths, but very good in law and very good in subjective part. So CS is ideal for them. What I normally suggest students who come to me who are averagely, आपको idea आ जाता है 12th में जिसको 80-85 के ऊपर आया है, उनके पास capacity है पढ़ने का. So then what I suggest is you can give CPT as well as CS foundation, both the things, and then दोनों का period अलग-अलग होता है. अगर आप CA में ज़्यादा taxation और accounts का पढ़ लोगे, more or less overlap होता है, just the law and the accounts part is different. So if you are academically smart, you can give it a shot. CACS correspondingly also, it is not as difficult as people think it is. Then next option is CWA. CWA किसके लिए है? When you have agreed that okay, you are not that good in the taxation aspect, not that good in accounts, but you're good in costing. So this is when CWA steps in. Right now, I'm not telling the scope of any of the professions. Right now, I'm just discussing कि आप क्या कर सकते हो, or on what basis can you choose a career. After CA, CS, CW अगर नहीं हुआ, so another option is LLB. आप 12th के बाद भी LLB कर सकते हो, 5 years का होता है. So there again, I suggest it is no point doing just an LLB. It is always preferable you do CS plus LLB. That helps. उसके बाद there are courses like BBI, BAF, BFM, BMS. These are the 4 aided courses which every college runs, and BCom obviously. So when you get into these 5 courses, my suggestion is you have 3 free years of your life, because whenever you have to pass an exam or clear or get marks in this, you can easily study 1 or 2 weeks prior. It is not something, and you may have to give your college attendance. So this is where what Harish sir said comes into the picture. You have to know what you are good in. If you do not know what you're good in, try to explore what is your passion. Now I'll give you an example of one of my students who was very keen on digital marketing. उसने खुद research किया, सब किया. There is one concept called as drop shipping. Drop shipping का मतलब क्या होता है? वो लोग खुद एक product का digital marketing करते हैं, और आप जब buy करते हो उनको automatic commission मिलता है. The student in his first year started earning 1.5 lakh rupees just by doing. He had done some 6 months course,
through Coursera or Udemy. I don't know what exactly, but drop shipping is the concept. And he started earning. He dropped out of college also. He said, sir, I'm earning so much, I want to focus on that. So अभी क्या हो रहा है currently, उसको पैसे के लिए कुछ जरूरत नहीं है, बट जब वो शादी के लिए जा रहा है लोग उसको बोल रहे हैं तेरा क्वालिफिकेशन क्या है. So if you have this societal thing, at least complete your graduation. But these 3 years from 12th to your BCom, if you are not doing any professional course, you have good enough time. Good enough means a lot of time. And these are going to be crucial years of your life. If you see abroad, after the age of 18 or 19, most of the students go away from their house. अगर आप बाहर जाके आप बोलते हो कि आप 20 साल के हो गए और आपके पेरेंट्स के साथ रहते हो, you will be looked down upon. आपको लोग बोलेंगे ये कैसे पॉसिबल है. हम वहां पे बाहर वेस्टर्न कंट्रीज में आफ्टर द एज ऑफ 18-19 वो लोग अलग ही चले जाते हैं. दे गो एंड हैव देयर लाइवलीहुड ऑफ देयर ओन. द रीजन इज आफ्टर देयर 10th जो खत्म होता है, दे हैव टू not only study but also start interning somewhere. Slowly we are implementing this education system जो नया आ रहा है. But what I suggest to all the students who are here, अगर आप प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो तो आप फर्स्ट या सेकंड लेवल क्लियर करके इमीडिएटली आपको वैसे भी आर्टिकलशिप या कुछ करना पड़ेगा. बट अगर आप प्रोफेशनल कोर्स नहीं कर रहे हो जो CS, CMA के अलावा है, तो आप ये एडिशनल जिसमें आपका इंटरेस्ट है, जस्ट टू ऐड ऑन टू व्हाट हरीश सर सेड, जैसे आपको लगता है आप डांस में बहुत अच्छे हो तो आप 6 महीना डांस सीख लो, ये कर लो एंड स्टार्ट इंटर्निंग विद द पर्सन हु इज टीचिंग डांस, जो डांस सिखा रहा है, जो डांस के बारे में बताता है. स्टार्ट डूइंग दैट एंड स्लोली बाय द एंड यू विल हैव 6 months का 6 टर्म गिनिए तो आप अलग अलग 6 चीजें ट्राई कर सकते हैं. सो तब तक आपको मालूम पड़ेगा कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हो. और जैसे हरीश सर ने बोला इट इज अ गिग इकोनॉमी. आज मैंने CA, CS, LLB सब किया हुआ होगा, बट जब मैं क्लाइंट को एडवाइस करता हूँ तो क्लाइंट मेरा क्वालिफिकेशन देख के नहीं पैसा देता है. वो मेरे को देखता है कि मैं उसका प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ कि नहीं, या मैं उनको जो सोल्यूशन चाहिए वो दे रहा हूँ कि नहीं. अभी हरीश सर ने बोला आई हैव अ सोल्यूशन फॉर एवरीथिंग. इट इज नॉट दैट. खाली जो मेरे स्कोप ऑफ एरिया या स्कोप ऑफ लर्निंग में आता है वो ही मैं ट्राई करता हूँ कि आई गिव. यू आर वायर्ड इन दैट वे. सो आपको जो फ्यूचर में यू थिंक आई एम वेरी गुड इन कोडिंग, आपको इतना आइडिया नहीं है लेकिन मेरे को कोडिंग में इंटरेस्ट है, सीखना है, सो आप कोडिंग सीख लीजिए 6 महीना 1 साल, 2 साल इंटर्नशिप कीजिए. और मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे आप अगर जाके किसी को भी बोलोगे सर मेरे को आपके पास से पैसा नहीं चाहिए, खाली मेरे को काम सीखना है, तो देयर इज आउट ऑफ 10 एटलीस्ट 2 people विल टेल यू आ जाओ, इवन ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक. ऐसे नहीं है कि आप नहीं, बट यू हैव टू हैव दैट माइंडसेट जहां पे आपको सीखना है. ठीक है. अगर आप, ये मेरा सजेशन है कि आप 12th के बाद और बीकॉम के पहले आपका डिजिटल प्रेजेंस होना बहुत जरूरी है. डिजिटल प्रेजेंस का मतलब क्या होता है? हरीश सर ने कहा लिंक्डइन पे होना है. लिंक्डइन पे सिर्फ होना जरूरी नहीं है. लिंक्डइन पे आप जो भी फील्ड में पैशनेट हो या जिसको भी आप लुकअप करते हो, उसका खुद का एक लिंक्डइन पेज होता है, उसको आप फॉलो करना शुरू करो तो ऑटोमेटिकली उसके जो भी आइडियाज होते हैं या जो भी वो नया चीजें आती है वो आ जाता है. लिंक्डइन एंड ट्विटर ये 2 होता है. आपका इंस्टा या फेसबुक प्रोफाइल होना मैंडेटरी नहीं है, बट ट्विटर और लिंक्डइन पे होना मैंडेटरी है. ट्विटर नॉर्मली लोग कंप्लेनिंग के लिए यूज करते हैं, बट ट्विटर एक नॉलेज बैंक है. अगर आप उसको सीखते हो, जो भी आपके रोल मॉडल रहेंगे सब लोग ट्विटर पे रहते हैं और वो लोग एक्टिव भी रहते हैं. आपका खुद का, या तो अगर आप वीडियो बना सकते हो तो बहुत अच्छा है, या तो आपका ब्लॉग राइटिंग, ये आपको होना बहुत जरूरी है. क्योंकि जब आप इंटरव्यू के लिए जाओगे तो आप बता सकते हो कि आपने अभी तक 10, 12, 20, 25, 30 ब्लॉग्स लिखे हैं. और आपको मालूम है ब्लॉग राइटिंग एक प्रोफेशन हो गया है आज. देयर आर मेनी ट्रैवल ब्लॉगर्स जिनका मंथली इनकम अप टू 5 lakhs जाता है, खाली वो ट्रैवल करते हैं और ट्रैवल के बारे में लिखते हैं. सो आपका डिजिटल प्रेजेंस इन द फॉर्म ऑफ लिंक्डइन, ट्विटर और आपका ब्लॉग राइटिंग, ये तीनों होना बहुत जरूरी है. अगर आपको लिखना नहीं जमता है, स्टार्ट शूटिंग वीडियोस. इट शुड नॉट बी मोर देन 3 or 5 minutes, बट एक नॉलेज ऐड कीजिए आप. और अगर आपको नॉलेज ऐड करना है तो आपको खुद को रिसर्च करना पड़ेगा, एंड इन दैट वे आपका खुद का स्किल बढ़ेगा. आपने हरीश सर ने जो बुक्स के नाम दिए, दे आर टेरिफिक. मतलब
अगर आपको फाइनेंस का जानना है, ये मैंडेटरी बुक्स है। इसके अलावा जो प्रणव सर ने बोला उसके लाइंस पे देयर इज वन मोर बुक, द सीक्रेट। मोस्ट ऑफ अस ने सुना भी होगा। इट इज अ वेरी इन्फ्लुएंशियल बुक। जो प्रणव सर ने अभी बोला वही लाइंस पे वो पूरा बुक बेस्ड है। यू नो, यू हैव टू हैव ग्रेटिट्यूड। आपको जो कोई भी चीज दुनिया में दो बार होती है, पहले बार आपके दिमाग में और दूसरे बार एक्चुअली में। अगर आप वो दिमाग में आपके आएगा तो ही वो इम्प्लीमेंट होगा। एंड अगर आप एक जॉब में भी जाते हो तो आपको मालूम होना चाहिए कि 10 साल के बाद आपको क्या करना है। जैसे आप सीए बन गए, दैट इज स्टार्ट ऑफ अ जर्नी। सीए होना एक जर्नी एंड नहीं करता है। सीए में देयर आर 10 बाइफर्केशंस। you can go in treasury, you can go in valuations, you can go in stock market, you can go in inventory management, you can go in tally। accounting में भी 3-4 streams है। एक होता है tally होता है, एक होता है SAP होता है। so you will take time to explore all these options also। so आप कहाँ पे भी जा रहे हो, अगर आप सीए के फील्ड में सपोज ट्रेजरी में जाना चाहते हो, तो एक आदमी जो ट्रेजरी में ऑलरेडी है 5 साल 10 साल, उससे बात कीजिए। और मेनन सर हैज अ सुपर्ब नेटवर्क। मतलब आप मेनन सर को कोई भी फील्ड का आप पूछोगे, ही विल हैव अ पर्सन जो ये फील्ड में है और ये काम कर रहे हैं। तो आपको जो भी करना है, मेनन सर से कहिए, रेशमा मैम से कहिए, वो आपको वो इंसान से बात करवा देंगे 1 to 1। बिलीव मी गाइज, हम लोग को अगर ये अपॉर्चुनिटी मिलती, वी कुड हैव डन वे बेटर। हमारे पास कोई नहीं था बताने के लिए अच्छा ये सही है ये गलत है। अगर आपको जो भी करना है, जो आदमी ने कर लिया है उसके साथ बात करना बहुत जरूरी है, बिकॉज दैट विल सेव योर टाइम। आप जो 2 साल बाद सीखोगे, आपको अभी सीखने मिल रहा है। दिस इज वन मंत्र ऑफ सक्सेस एट अ यंग एज। और जस्ट वन लास्ट थिंग इज, यू हैव टू, जब आप 12वीं के बाद करते हो, आपको हर एक 6 महीने पे एक स्किल होना चाहिए। एंड end of 3 years you should have at least 6 skills which the employer, जो employer या आप खुद का भी करते हो, आपको कहीं पे दिखाने का जरूरत नहीं है। ऑटोमेटिकली वो आ जाता है आपके सीवी पे। आपने एक्सेल कहा, आप एक्सेल का एक शीट बना सकते हो जो आपको किस में हेल्प करता है। आपने रीडिंग लिखा है तो आप आजकल ये जैसे अमृत देशमुख जो सर ने बोला, ही प्रोवाइड समरी ऑफ बुक्स। सो व्हेन आई हायर अमृत देशमुख, आई नो कि उन्होंने 1000 बुक का ज्ञान मेरे को मिलने वाला है। तो आपको एटलीस्ट 6 स्किल्स इन एट द पीरियड ऑफ 6 months लिख के, इट शुड बी डिजिटली अवेलेबल, जहाँ पे विदाउट मीटिंग यू आई कैन सी दो स्किल्स। आप अगर ये करोगे तो यू आर एनीवेज अबव द मार्केट। एंड जो हरीश सर ने कहा, इट इज वेरी ट्रू। आपको एक एंट्री लेवल के लिए या शादी करने के लिए, ये 2 चीज के लिए ही आपका डिग्री काम आएगा। उसके अलावा आपका डिग्री आप जब 2 साल या 3 साल, आई डोंट नो हाउ मच रेलेवेंट दिस इज माय एक्सपीरियंस, सॉरी प्रणव इफ नो, सचिन तेंदुलकर के पास कोई डिग्री नहीं है। हाँ एग्जैक्टली। मतलब आप एक शादी और एक जॉब में एंट्री, जैसे प्रणव ने अगर एमबीए नहीं किया रहता तो जॉब एमबीए का मिलना मुश्किल है। बट आफ्टर गेटिंग द जॉब, एमबीए में जो पढ़ाया हुआ है और एक्चुअली जो काम होता है बहुत अलग होता है, विच यू विल लर्न इवेंचुअली। सो ये 2 चीजें के लिए डिग्री चाहिए आपको, ऐसे नहीं है कि नहीं चाहिए, बट द स्किल इज मोर इम्पोर्टेंट। आपके पास डिग्री छोटी भी हुई तो आपको 2 साल लगेगा वहां तक पहुंचने को, बट आपको मिल जाएगा। सो फोकस ऑन द स्किल मोर देन द डिग्री। इसमें एक चीज मैं बोलूं, यस, because it is very relevant what you said. So na ek there was a era where there were many specialists, so the guys who knew a very good amount of small part of work. बाद में एक एरा आया कि जब भी जनरलिस्ट का एक साइकिल था कि एमबीए सीए की जनरल बट दे आर नॉट स्पेसिफिक टू वेरी स्मॉल पार्ट। मुझे ऐसे लगता है, जैसे मैं जितना इंडस्ट्री में देख रहा हूँ, कि फिर से एक साइकिल आएगा कि जहां पे नोइंग वेरी स्मॉल थिंग्स अबाउट सर्टन थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक अगर अकाउंटिंग है तो उसमें फोरेंसिक अकाउंटिंग या समथिंग लाइक दैट, या अगर कॉस्ट अकाउंटिंग है तो उसमें एक सर्टन इंडस्ट्री में स्पेसिफिक, कि जिसको इंडस्ट्री का कॉस्ट पैरामीटर्स फॉर हंड्रेड्स ऑफ कंपनीज पता है एंड ही इज अ इंडस्ट्री स्पेशलिस्ट। तो फिर से एक बार ना स्पेशलिस्ट का साइकिल आ रहा है, ऐसे मुझे लगता है। बिकॉज देयर इज अ एरा ऑफ 10-15 years जहां पे जर्नलिस्ट बहुत हो गए मेरे जैसे, जिनको शायद से बहुत सारे बिजनेसेस के बारे में थोड़ा इंपॉर्टेंट पता है, बट
किसी एक बिजनेस में मुझे अगर आप डालोगे तो आई विल बी एज गुड एज प्रोबेबली अ फ्रेशर. As this very famous person called Naval Ravikant, I don't know how many of you know about Naval. He's a Twitter mainstream guy. He has basically given a lot of talks where he basically believes that there will be something called specified knowledge, जैसा अभी प्रणव बोल रहा है. एक स्पेसिफिक एरिया अगर आप चैंपियनशिप में रख सकते हो. इट्स लाइक आईपीएल, यू नो, आईपीएल में लोगों को स्किल के लिए पिक किया जाता है. डेथ बॉलिंग इज अ स्किल, पिंच हिटिंग इज अ स्किल. आपको टेस्ट मैच खेलने को आता नहीं पता, वो करोड़ों सिर्फ आईपीएल से कमाता है. सो दैट इज आई थिंक द फ्यूचर एज प्रणव सेड. सो डिग्रीज का रेलेवेंस स्लोली कम हो रहा है. The only thing that degrees will help you is in वो एक बोलते ना एक social pressure होगा आपके ऊपर कि सब डिग्री कर रहे आप भी करोगे. I'm not saying छोड़ दो. I'm not saying छोड़ दो degrees, but I'm just basically saying that don't be obsessed with it. Be more focused on skills and learning. Yeah. One more thing I'll just like to add. I have a relative. He's just focused on making of televisions. He's actually a television repairing person. Today his monthly income is around 3 to 5 lakhs. I think I know just by doing televisions. You imagine. And this is 20 years back. The degree also that he got in the television ka thing is not in his name. Degree pe it is like a classic case of Fung Su Pangdu from 3 Idiots. You know, they were not allowed to do. There was some leaving certificate problem. Whatever. So I think skill is the most important part. डिग्री एंट्री लेवल के लिए अगर आपको जॉब करना है, यस एंट्री लेवल के लिए डिग्री लगेगा. अगर आपको बिजनेस करना है तो एक्सपीरियंस ही क्रूशियल है. So yeah, thank you so much, Harish sir, Maharshi sir, and Pranav sir. It was such a bliss. Don't call me sir. Myself, I know I'm a student. I completely enjoyed listening and so many insights. मतलब आपने उनको qualities भी दी, careers भी दिया, academic के बाहर जाके क्या करना है वो भी दिया. So it was very holistic, approach they got. My only fear is क्योंकि हम डिग्रीज का बोल रहे हैं तो कल से पढ़ाई ना छोड़ दे कि मैम सबने बोला ना डिग्रीज इम्पोर्टेंट नहीं है. नहीं, मैंने बोला ना ड्यूटी इम्पोर्टेंट है. नहीं तो कॉमर्स करना ही नहीं था. अगर किया है तो अच्छे से करो. मैम छोड़ देते हैं 12th स्टैंडर्ड की. नहीं है. So students are good at picking up the things that they want. Yes. So we would have loved to take the Q&A, but already we are 2 hours now into the session. So I'll request my students. I'm just putting up this मेल आईडी. ये अपने क्लास का है स्टूडेंट. सो इफ यू हैव, वैसे तो आई डोंट थिंक कोई स्कोप रहेगा आपको क्वेरीज के लिए, क्योंकि इतना सारा अगर आपने नोट डाउन किया होगा तो डेफिनेटली यू गॉट अ गुड इनसाइट अबाउट एवरीथिंग इन कॉमर्स. बट अगर कुछ है तो आई विल रिक्वेस्ट कि हम स्पीकर्स का फिर से अब टाइम न लें और आप मेल डाल दीजिए. स्टूडेंट्स कैन पुट अप द मेल्स. यू हैव 2-3 क्वेरीज. वी विल सॉर्ट देम आउट एंड वी विल डायरेक्ट द क्वेरीज टू द स्पीकर्स एंड वी विल गेट बैक टू यू. सो yeah, that's all. Thank you so much for your precious time on a Sunday evening. It's actually family time, but you still, on request of Anand sir and me, you came here only to guide our students. Please keep blessing them, bless the class and bless us that we are able to coach them better, and all of them have a good future ahead and they are as successful as you all are today. Thank you so much for your presence. Thanks for your time. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thanks a lot. Thank you. Yeah.